شروع اللہ کے نام سے جو ہر آن نئی شان کے ساتھ مہربان ہے۔ ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیوز سے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں محسن نواز میں ہوں جہاں آرا اور اور ساتھ ہمارے موجود ہیں سمیرہ افتخار۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اور جہارا کی طرف سے بھی آپ سب کو سلام پہنچے۔ جی دیکھیں نا وعلیکم کسی کے السلام۔ حصے کا کام ہم کتنی جلدی بس سنبھال آپ نے لیتے ہیں۔ موقع ہی نہیں دیا مجھے سلام کا محسن صاحب، اصل میں قوم اتنی پرجوش ہے نا کہ سلام بھی ایک دوسرے کے ہی ادا ہو رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ جو اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے اور جی۔ دوسرے حصے کا کام، اس میں سے بلا زیادہ یاد کون سا رہتا ہے؟ دوسرے کے حصے کا دوسرے کے حصے کا کام۔ ناظرین، دوسرے کے حصے کا کام، الیکٹرا کا ٹی وی میرا ہوا۔ یہ ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو ہے، لائے ہیں آپ کے لیے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز، جو کہ ہر سیٹرڈے کو آپ کے ساتھ ہم پریزنٹ کرتے ہیں دوپہر 1 سے 3 بجے تک۔ اور ولنگ ویز کا یہ شو دراصل ہمارا نہیں ہے، تو پھر یہاں یہ کس کا شو ہے؟ یہ تو ان سب کا شو ہے محسن صاحب جو ہمیں کیمرے کے اس پار سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دنیا میں کہیں سے بھی جی جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ شو تو ان سب کے لیے ہے نا، جس کو اسپیسیفکلی ہم محسن صاحب لے کے آتے ہیں۔ بالکل، اور آئیے گا شو پر شامل ہو جائیے گا۔ آج ہم نے جو باتیں کرنی ہیں باتیں بڑی خاص ہیں، اور عام طور پہ میں کہتا نہیں ہوں کہ آپ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں وغیرہ وغیرہ، لیکن میرا خیال ہے کہ آج والی جو باتیں ہیں جو ہم نے پلان کی ہیں اس کے مطابق ان کو شیئر کرنے یا دوسروں تک پہنچانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی روٹینز کو سیٹ رکھ سکیں گے، کیونکہ جس طرح کا ماحول ہے تو ہماری توجہ تھوڑی کام سے ہٹی بھی ہوئی ہے، جی جی اور ہم اپنے جو سرکل آف کنسرن یا جہاں ہمارا انفلوئنس ہو سکتا ہے، جہاں ہمارا فوکس ہو سکتا ہے، وہاں سے ہٹ کے ہم ذرا زیادہ اپنی توجہ کو مبذول رکھے ہوئے ہیں ملکی حالات پر جی یا جی سیاسی جی حالات پر۔ جی جہاں جہاں آپ کا رول بنتا ہے وہاں تو بہترین ادا کرنا ہے، پر غیر ضروری طور پہ ہم نے اپنے کام کو چھوڑ کے نہیں بیٹھ جانا۔ ہاں، انگیج نہیں کر لینا خود کو غیر جی ضروری طور پہ۔ جی اچھا، یہ بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے محسن صاحب کہ ہمارا رول کہاں کہاں پہ بنتا ہے، ایگزیکٹلی آج مطلب یہ بھی چیزیں جو ہے نا تھوڑی کلیئر ہونے کی ضرورت ہے جی کہ جی بیسکلی بینگ یو نو سٹیزن، ہم پاکستانی سٹیزن، ہاؤ وی کین پرفارم آور رول پازیٹیولی بیسکلی۔ پاکستان سے ہم سب کو بہت پیار ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ ہم پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ جذبات رکھتے ہیں، ہم اپنا بہترین رول ادا کرتے ہیں، ہم دنیا کو پازیٹیو اور اچھا میسج دیتے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں، یہ سب کچھ بالکل واضح ہے، آن ریکارڈ ہے۔ ہم میں سے جو کوئی بھی کئی دفعہ کچھ اینشیس ہو جاتے ہیں، بے چینی سی طبیعت میں آتی جی ہے، ظاہر ہے جی کہ جی جی خبروں میں ہر طرح کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، جی تو آج ہم نے اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے کہ اپنے توجہ کو، فوکس کو ہٹا کے کوئی بے چین ہو جانا یا ایسے موضوع پر ہی پھر بات کرتے رہنا جو ہمارا موضوع نہیں ہے ڈائریکٹلی، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی، آپ نے بہت اہم بات کی محسن صاحب کہ ڈائریکٹلی نہیں ہے، گو کہ یہ اس سے بڑھ کے دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری شان ہے، ہمارا ملک، ہماری آن ہے، ہمارے رہنے کی جو ایک مین ریزن ہے نا، اتنی خود مختاری، اتنی خوشی کے ساتھ اور آسانیاں ہیں جو زندگی میں، وہ جی صرف ہمارے اس وطن سے ہی یہ سب ممکن ہے۔ ہم اسی کے ساتھ ہیں، وطن ہمارے لیے ہے، ہم وطن کے لیے ہیں، مگر اس میں ہمارا خیال ہے کہ کنٹریبیوشن ہماری ایسی ہونی چاہیے جو کہ آسانیاں پیدا کرے دوسروں کے لیے، اور نہ کہ تکلیف کا باعث بن جائے۔ ایگزیکٹلی، اور لفاظی سے نکل کے پریکٹسز، بیسٹ پریکٹسز کو اپنانا۔ جی جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر بہت اچھے جذبات ہیں، بہت باصلاحیت لوگ ہیں، ماشاءاللہ بہت طاقتور ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں کسی بھی ترقی یافتہ قوم کے بالکل شانہ بشانہ جی، پہنچ جانے کی تمام صلاحیتیں رکھتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں محسن لیکن صاحب، یہ اس تو میں ثابت بھی ہو رہا ہے۔ یہ تو ثابت بھی ہو رہا ہے، جی لیکن اس سارے معاملے میں یعنی کہ جیسے کئی دفعہ ہم اوور تھنکنگ میں، پریشانی میں، زیادہ جذبات میں بہ جاتے ہیں۔ جذبات میں، کیونکہ اس کے پیچھے کئی دفعہ کوئی سائیکولوجیکل ریزن بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں بعض ایگزیکٹلی، اوقات کسی کی اپنی پرسنل لائف میں کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو جب کوئی خبروں کی طرف توجہ جاتی ہے تو آپ کے اندر ایک بے چینی سی پیدا ہو سکتی ہے، تو بے چینی نہیں پیدا ہونے دینی،
अपना बेहतरीन रोल अदा करना अच्छा, है। नींद को जैसे कंप्रोमाइज कर रहे हैं लोग बहुत ज्यादा, जो चीज मैं भी ऑब्जर्व करी हूँ मोहसिन साहब। अब 2-3 लोगों से जैसे मेरी बात हुई तो सबने यही कहा कि नींद नहीं, क्योंकि हमारी पूरी हुई तो नींद नहीं हमारी। तो अगर आपकी नींद ही नहीं पूरी हुई तो फिर ख्वाब कैसे पूरे होंगे? हाँ, वाह वाह, तो बड़ी खूबसूरत बात है। है ना। और ख्वाब हमारे जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं मोहसिन साहब। बड़ी बड़ी खूबसूरत जिसमें बात आपने जी, कही। और ख्वाबों में से ही तो एक ख्वाब ये भी है कि हमारी एक आज़ाद खुद मुख्तार जो हमारी मुमलिकत खुदादाद है, जी। हमने उसमें रहना है, हमारी जनरेशन्स ने एंजॉय करना है। तो जो नींद है ना वो भी पीसफुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी एक ख्वाब की ताबीर है, जी। ये वतन हमारा, ये भी एक ख्वाब की ताबीर है। तो हमारे साथ, हमारे लिए बड़ा बाइस सद इफ्तिखार है समीरा इफ्तिखार का हमारे साथ बैठना। समीरा, क्या हाल चाल आपका? मैं बिल्कुल ठीक सर। आप हमारी बातें चुपचाप सुन रही हैं, इसकी बिल्कुल, दो रीजंस बताइए। मैं उसके रीज़न बिल्कुल आपको बताती हूँ। जैसे आप एक तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत होना कोई बहुत अच्छी बात है, और ये एक साइन होता है कि आप रहते ज़रूर हैं लेकिन उसके लिए एक जज्बात भी रखते हैं। हाँ, और दूसरी सबसे अहम बात है कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, और अभी मिस जहाना भी इस पे बात कर रही थी कि नींदें इस वक्त बहुत सारे लोगों की ख़राब हैं और सेहत के मसाइल आ रहे हैं। और दूसरी सबसे जो अहम चीज़ है कि ये सारी जज्बाती कैफियत है। देखें, वॉर हमेशा वेपन से ही नहीं होती है, वॉर आपकी बातों से, आपके लहजों से, और बहुत सारे ऐसे साइन होते हैं जिससे वॉर एक तसादुम सा हो जाता है, असाबी जंग होती है। असाबी जंग भी है इस जी। पे, नफ्सियाती जंग भी नफ्सियाती है। जंग भी है। और आजकल सबसे बड़ी जंग तो आपको पता है सोशल मीडिया की सोशल जंग। सोशल मीडिया, मीडिया। मोहसिन साहब, अल्फाज की जंग भी। अल्फाज की जंग। अब आप देखिए, मतलब मैं कुछ 1-2 मीडिया देख रही थी, जो हमारी कुछ रिपोर्ट्स भी थी। हाँ, जी। हाँ। तो लिटरली कोई अब झूठ सच तो वी कांट, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते ना, वी आर जस्ट अ ले मैन। जी। मगर उसमें क्योंकि जो झूठ तो साबित हो ही जाना होता है जी, 12-14 जी। घंटे के बाद। का और exactly। 12-14 घंटे के बाद फिर माजरत भी आनी ही होती है आनी होती कि वो है। माजरत चाहते हैं, जो है वो माजरत भी गई। आनी होती है, सबूत भी आने होते हैं। सबूत भी आने होते हैं, सबूत पकड़े भी शर्मिंदगी जाते हैं। वो जो उन्होंने जो उनकी तरफ से हुई बातें, जी, जी, जी। जो कि बड़ी बल्कि बादों का तो वो लोग जिस तरह से खबरें दे रहे थे, तो अब चूंकि झूठ के सर भी नहीं होते और पाँव भी नहीं होते। मैं तो यहाँ पे थोड़ा लाइटर नोट में एक बात भी कहूँ, भी आज सुबह जब मैं सुन रही थी ना, हाँ, हाँ। तो मैंने भी जरा शरारतन एक जो एक और मुल्क है हमारा, मैंने कहा जरा उसका मीडिया भी अब थोड़ा नाश्ता करते हुए, तो लिटरली थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि ऐना दोवां जो होने असल गल केड़ी है, एक कोई तीजा पासा सुनना पड़ेगा नहीं, वो सानू। फिर बाद में परेशानी भी उनको हुई कि हो, यानी मुबालगा। में अल्फाज की जंग भी शामिल है ना, बिल्कुल। जी, कि क्योंकि आप- ये सारा नफ्सियाती दबाव ही तो है। एग्जैक्टली। यानी आप देखें कि जब आज के दौर में ये जैसे मीडिया वॉर कहते जी हैं, जी जी। तो कोशिश उनकी ये थी कि किसी तरीके से ये नशरियात चूंकि लाइव चल रही हैं, तो इन लोगों को ये इस तरह का मैसेज दिया जाए कि जी ये मतलब बस 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 हाँ, तो मतलब कभी तो ये भी शक हुआ, जैसे आज मोहसिन हाँ, साहब, अब हमारी कौम इतनी जिंदा दिल है ना। जी, आई जी। रियली अप्रिशिएट। बात भी आज हमने यही करनी है कि हमने पॉजिटिव ही रहना है। जी, जो जी। भी आपने बड़ी खूबसूरत लाइव शो से पहले जो आपने डिस्कशन की ना मोहसिन जी, साहब, जी। उस पे भी अभी आप रोशनी डालेंगे दोबारा जी। ब्रेक के बाद। जी। लेकिन मैं एक चीज उसमें ऐड करूं कि हमारी कौम की खूबसूरती ये भी है कि बड़े जिंदा दिल है। बहुत ज्यादा जिंदा दिल है और मुत्तहिद, जो इसमें से एक ब्लेसिंग निकली है ना, जी। बहुत शानदार। मेरा ख्याल है कि उन्होंने हमारे ऊपर हम जो आपस में बहुत जरा practice उन्होंने- जी। बिखरे हुए सोच, हम सियासी सतह पे कई दफा, समाजी तौर पे कई दफा हमारे आपस में ना सोचें मुख्तलिफ भी होती हैं, जी, लेकिन बिल्कुल। मुत्तहिद कर दिया इस सारे माहौल ने। Exactly। और आप देखें कि हर फोरम पर इत्तेहाद की बात हो रही है, तो ये तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसके नतीजा में एक कौम जो है इस तरह से मुत्तहिद, यही तो पाकिस्तान की खूबसूरती है। खूबसूरती ये है मोहसिन साहब, और हमें बेसिकली इस खूबसूरती को कायम भी रखना है ना। जी, जी, इट कैन नॉट बी फॉर टाइम बीइंग, बेसिकली इट्स फॉर परमानेंट। बिल्कुल। और ये जब हम इसे कायम रखेंगे तो ही हम इसको फिर हमेशा के लिए अपने मुल्क को फायदा भी दे सकते हैं। क्योंकि बेजार हैं जो जज्बे हुब्बुल वतनी से, वो लोग किसी से भी मोहब्बत नहीं करते। वाह, वाह, जिस घर में आप रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, जिस तरह हमें अपने घर से प्यार होता है, इसी तरह हमें अपने वतन से बहुत प्यार है। और इस प्यार का इजहार करने का जो तरीका है, आज हम उस पर बात कर रहे हैं, अपना बेहतरीन रोल निभाना। अपना बेहतरीन रोल कैसे? आप कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, आप अफवाज पाकिस्तान के हमारे सिपह सालार हैं, आप किसी भी, इसमें ताज़ीम भी है, तकरीम भी है, सलाम भी है आपको, क्योंकि यही तो है
यही तो है अपनापन। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो समीरा आप बताइए कि ओवरऑल जो है, जैसे हम बिलिंग वेज में काम करते हैं तो हम लोगों की इमोशनल हीलिंग पर, इमोशनल चैनलाइजेशन पर काम कर रहे होते हैं। क्या देखा जब हम बात करते हैं, शुरू में लोगों के अंदर कई दफा बेचैनी मैंने भी देखी, लेकिन फिर जल्द ही जब आप उनके साथ थोड़ी बात करते हैं तो इमोशंस जो हैं वो चैनलाइज होने लगते हैं, पॉजिटिविटी पैदा होने लगती है, स्ट्रेस मैनेज होने लगता है। जी जी सर, उसका सबसे मेन जो साइन होता है वो ये होता है कि वो पर्सन जब ये पहचानना शुरू कर देता है कि चेंज बाहर से नहीं अंदर से आता है, क्योंकि ये नजरियात की तब्दीली होती है, अंदर से चेंज होंगे। जैसे आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइकोलॉजिस्ट है, और अगर वो अपने रोल को ही इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू कर दे तो ये बहुत बड़ा साइन होता है पॉजिटिविटी का। लेकिन अगर उसके दरमियान में कोई जज्बात हाइल हो जाते हैं, कोई बेचैनी आती है या कोई स्ट्रेस आता है, तो वो सबसे बहुत सारे अपने जो रोल अदा कर रहे होते हैं वो साइड पे हो जाते हैं, बल्कि वो उस फिक्र में लग जाते हैं या उस जज्बात के पीछे लग जाते हैं जो उसको अंदर से तंग कर रहा होता है। तो सबसे पहले जो आप चेंज लाते हैं वो इनर से लाते हैं, जो कि आउटर साइड की तरफ आता है, और शुरुआत होती है एक नजरियात से, एक पैराडाइम से, जो कि आपको एक नए ख्याल को चेंज करके ही मिल सकता है। उसके लिए सबसे पहले आप अपने कंसर्न को पहचानें। जैसे आपने शुरू में एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि सर्कल ऑफ कंसर्न होता है और इन्फ्लुएंस होता है। कंसर्न वो होता है जिसके अंदर हम अपने इख्तियारात हमारे पास नहीं होते हैं। जैसे अगर बारिश हो रही है और हमने किसी जगह पे पहुंचना है और वो बहुत अहम है, या ट्रैफिक जैम है, या कोई इस तरह के मसले हैं, लेकिन हमारा इख्तियार उस जगह पे नहीं चल रहा, तो उस चीज़ को भी हमने पहचानना है। और दूसरी साइड ये होती है कि वो जगह जहाँ हमारा इख्तियार चल सकता है जी। अब जब हम अपने इख्तियार को समझेंगे, अपने उस जज्बात को एक सही जगह इस्तेमाल करेंगे कि हम अपने रोल को पहचाने, और एक लिमिटेशन होती है हर पर्सन की, तो अपनी लिमिटेशन को पहचाने और उसी को इस्तेमाल करते हुए वो एक हेल्प कर सकते हैं सबसे पहले खुद की, फिर स्टेट लेवल पे। तो ये इसी तरह चेंज होने वाला साइन होता है कि शुरू हमने अंदर से करना होता है। तो जैसे ही आप ये समझेंगे कि अगर बाहर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई इस तरह के मसले चल रहे हैं, काम है जिस पर आप एक लिमिटेशन के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। जैसे बहुत सारी फैमिलीज को मैंने देखा है, वो परेशान हो रही हैं कि अब बाहर क्या होगा, हमारे बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, एग्जाम्स थे, या फिर कोई इस तरह के मसले मसाइल चल रहे हैं। तो उसके लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है, अगर उन्हें इस सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, तो फैमिलीज को या उस पर्सन को सबसे पहले ये समझना है कि वो अपने जज्बात को सबसे पहले पहचाने, कि सबसे पहले उसको खुद में मजबूत रहना है। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम उनके साथ जिस तरह की वफादारी कर सकते हैं हम उस पर अपना रोल अदा ज़रूर करें, लेकिन इस तरह का वो रोल ना हो कि हम खुद कमज़ोर पड़ जाएं। एग्जैक्टली और कितनी खूबसूरत आपने बातें की कि वो मतलब जो अपना रोल है वो हमारा इतना मजबूत और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी सोचें हैं ये एक जबरदस्त एनर्जी का सोर्स है ना। तो जिस तरफ आप जिस अंदाज से स्प्रेड करेंगे वैसी फजा बनती जाएगी। तो अपनी फजा को अच्छा पॉजिटिव रखना सबसे बड़ी आपकी तवानाई है। इस वक्त सबसे बड़ी ताकत जो हमारे पास है वो हमारे अपने हर इंडिविजुअल के पास है, वो हमारी पॉजिटिविटी की, इमोशंस की। मतलब मैं एक बात ये सोच रहा था कि इससे ज्यादा अच्छी खूबसूरत बात को सुने भी और आगे भी जरूर शेयर करें कि इससे ज्यादा बड़ा कोई इत्मीनान हो सकता है कि हम अमन की बात कर रहे हैं। हमने अमन की, इत्मीनान और मोहब्बत की बात की, हमने पूरी तरह से इस खित्ते के हवाले से एक जिम्मेदारी वाले सारे बयान दिए। हमारे तमाम इंडिविजुअल्स ने भी, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस हिमायत में हो कि कोई फसाद हो, खित्ते में बदअमनी हो, कुछ भी। लेकिन अगर जाहिर है कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो उसको डील करने के लिए इदारे मौजूद हैं और इदारे अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो बात ही है ना मोहसिन साहब के जो इदारे मौजूद हैं, हमें उन पे ट्रस्ट करते हुए उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और वो कैसे हम कर सकते हैं, वो जब हम खुद काम होंगे, अपने जज्बात पे काम करेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे, तो ऑब्वियसली वो भी अपना काम बखूबी अंजाम दे सकेंगे। हाँ, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये जो हमारा शो है, चूंकि उधर भी देखे जाते हैं ना हमारे शो, बल्कि उधर ज्यादा देखे जाते हैं, तो उधर वालों को ये शो देख के, ये जो हमारा एक यहाँ अभी जब मैं आ रहा था ऑफिस, तो
सड़कों पे बिल्कुल नॉर्मल सारी सूरत हाल थी। जितने लोगों से मेरी बात हुई है उन लोगों के हवाले से भी खैर आफियत सब कुछ, लेकिन सब अगर कुछ मोहसिन सब साहब कुछ एवरीथिंग, हाँ मतलब लास्ट नाइट वी वर एट डिनर जी और वी केम वेरी लेट, मतलब जी हम कोई 10 बजे घर आए और एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल। मैं मतलब जिंदगी में कुछ भी हम सुनते थे, मैं वही सोच रही हूँ कि शायद ये अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात भी थोड़ी देर पहले की कि इससे हमें एज नेशन हाँ यूनाइट होने का बड़ा बड़ा मौका अच्छा मिला। मौका, बड़ा अच्छा जी, मौका। अदरवाइज तो देखिए हम तो अपने ही बहुत से मसाइल में घिरे हुए थे ना, जी छोटी छोटी सी पैटी पॉलिटिक्स थी, तो जी उससे पूरी कौम अब सभी लोग रात जो थे वो अपनी अपनी उसमें मसरूफ थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बल्कि तो ये जो माइंड सेट है ना लोगों का जी कि अब कुछ दिन बाद काम हाँ करेंगे, हाँ नहीं नहीं ये वो माइंडसेट है जिसपे बेसिक हमारा मैसेज भी यही होगा यही है। कि हमारा जो कामयाबी जो है ना किसी भी नेशन की, वो इसी में ही है कि आपका जो काम है वो उधार नहीं होना चाहिए। उधार तो वैसे ही नहीं होना चाहिए, हाँ काम भी उधार नहीं होना काम भी चाहिए। उधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो दूसरा चाहता है। हाँ वही चाहता है आप बुखला जाएं, जी आप जी काम छोड़ दें, आप जी घरों में बैठ जाएं, जी आप परेशान हो जाएं, आप नेगेटिव, आप कहीं पता नहीं क्या होने वाला है। तो जनाबे वाला इन सोचों से डिसफंक्शनैलिटी पैदा होती है। जी जी हमने फंक्शनल रहना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जैसे मेरी मेरी जितने लोगों से बात हो रही है, बल्कि ये मैंने एक चीज जरूर देखी कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं ना, वो जरूर मैसेज करके कॉल करके पूछ रहे हैं कि जी क्या हालात हैं, क्या हालात अच्छा हैं, कैसे हैं आप, कैसे खैरियत हैं से आप हैं। लोग, क्योंकि वो दायरा है कि उनका मीडिया कंसर्न है, जी 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 बिल्कुल। अच्छा, कंसर्न भी होता है, खैर वो भी अच्छा लगता है जब अच्छी कोई बात है खैरियत हाँ पूछता है, जी तो वो भी ठीक है। लेकिन मैं भी जैसे बता रही थी ना कि जिंदा दिल कौम है मोहसिन साहब, जी तो उसमें बहुत सारी ऐसी मीम्स मेरी नजर से गुजरी जिस पे मैं बड़ा एंजॉय भी करी थी। जी उसमें उन्होंने लिखा था कि मतलब हमसाये से, हमारे जो हमसाया मुल्क है वहां से तो ऐसी खबरें भी आ रही, अब अगर खबरों पे जाएं और हाँ अगर पैनिक होने पे हाँ जाएं हाँ और अगर वैसे उसे खबर कहना भी जो है ना वो थोड़ा अजीब सा लगता प्रोपेगेंडा है। कह लें फिर हम उसको, इट्स राइट अप्रोप्रिएट लफ्ज तो यही है। प्रोपेगेंडा ना, और जी साइकोलॉजी, इट्स प्रोपेगेंडा में एक साइकोलॉजी का भी है मोहसिन साहब। पॉलिटिकल हाँ, साइकोलॉजी कि जिसमें वो कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ प्रोपेगेंडा, जिसमें वो कहते हैं कि जो न्यूज़ है ना एक्चुअल, उससे ज्यादा प्रोपेगेंडा एट टाइम जोर पकड़ लेता है। तो हमारी जिंदा दिल कौम की खूबसूरती ये है कि वो प्रोपेगेंडा को इतनी खूबसूरती से हंसी मजाक में वो लेके आते हैं कि हम रियलाइज कर लेते हैं। जैसे एक साहब ने लिखा हुआ था हाँ हाँ कि जितने बुरे तरीके से लाहौर पे कब्जा हुआ है, हाँ तो मैं तो इस टाइम कहीं बाहर के मुल्क में बैठ के ये पोस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने बड़ा एंजॉय किया, जी क्योंकि और जब मैं आ रही थी अभी ऑफिस में, क्योंकि लाइव शो ऑफिस से ही हो रहा है, तो मतलब ट्रैफिक रवां दवां थी जी और जी रौनक और सब कुछ। पार्क में भी उसी तरह गहमी गहमी थी। सुबह वॉक पे भी मैं गई तो पार्क में बड़ी गहमा गहमी थी। तो माशाल्लाह ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। और पाकिस्तान में इस टाइम भी मामूलाती ज़िंदगी जो है ना मोहसिन साहब, जी वो जी रवां दवां है। और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं आपको बताऊं कि जी, और जो जो ऑथेंटिक सोर्सेज। ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जी, वहां से जो खबरें हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बरक्स हैं, हाँ बरक्स हाँ हैं। पाकिस्तान That's की totally opposite. इंतहाई शानदार मजबूती की खबरें हैं एग्जैक्टली, और बिल्कुल। पाकिस्तान के बहुत ही मुस्तहकम होने की, बल्कि इसके अंदर एक ये भी कि हम सिर्फ कहते नहीं है, वही वही बात है कि शायद हम लोग उतना ज्यादा वावेला मोहसिन साहब, आई रियली अप्रिशिएट कि जिस बुर्दबारी से पाकिस्तानी फौज ने मुजाहरा किया ना, बहुत उम्दा बिल्कुल जज्बाती नहीं हुए, जी बिल्कुल उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, बिल्कुल वो रिएक्टिव नहीं हुए। सोच समझ के बहुत सोच समझ के उन्होंने हाँ पूरा मौका देने के बाद हाँ फिर उन्होंने कुछ मैं जिसे कहूंगी ना मामूली सी जवाबी कार्रवाई हाँ की। अभी तो मामूली सी पर मामूली सी। अभी तो मामूली सी पर Inverted उनके ये commas हालात में। हैं जी इन्वर्टेड कॉमर्स में मामूली सी है। अच्छा, चाहते ना चाहते हुए भी हम जंगी सूरत हाल पे चले जाते नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये कि ये सारी बातें चूंकि हो रही हो रही है हैं ना। तो इनके बारे में मौकिफ अपना दुरुस्त करना बड़ा जरूरी है। हाँ। सो काम जो है और हमारी बातचीत का बेसिक, मोहसिन साहब सॉरी टू कट यू, जी। हमारी बातचीत का बेसिक मकसद भी ये है कि देखें हम भी डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, हम हाँ। भी हर सूरत हाल से आगाह हैं। और लेकिन हम काम पर हैं, ये लेकिन हमारी हम- ड्यूटी थी आपसे मिलना। एग्जैक्टली हम बिल्कुल इस काम पे भी हैं। इसके बाद हमारे रूटीन के काम भी होंगे, मॉर्निंग के जो काम है वो भी होंगे। और मतलब ये चीज़ इफेक्ट नहीं हो रही है हमारे मूड से। आपको कहीं नहीं लगेगा कि मूड, हमारी नींद से आपको नहीं लगेगा। तो असल मैसेज तो हम ये देना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली और ये जो असल मैसेज है इसको आप भी ज्वाइन कर रहे हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज लाहौर के विलिंग वेज स्टूडियो से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है हर हफ्ते को दोपहर 1 से 3 बजे तक, जिसमें मैं होता हूं और मेरे साथ
विसाल नहीं बल्कि जहाँ आरा होती है। जी 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 जी, मोहसिन जी, साहब, जी। ये मुझे लगता है एक जंग तो विसाल पे भी होनी और आज हमारे दरमियान समीरा इफ्तिखार है। जी। अच्छा, समीरा इफ्तिखार ने जो जितनी फोकस्ड किस्म की बात की है, बारिश की बड़ी मिसाल जो बेहतरीन, बहुत बहुत बेहतरीन बात की समीरा। हमारी बड़ी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल भी हैं जी और मुझे बातों से लग रहा है कि नींद इनकी पूरी है। जी वाह। जी हाँ, नींद की आपने ख्वाब बात भी की। पूरी है आपके? बिल्कुल, ख्वाब भी मेरे पूरे हैं और नींद भी मेरी पूरी है। वाह, जबरदस्त बात है। तो हम एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। तो आप अपने कमेंट्स के साथ आइएगा, बताइएगा आपका काम काज कैसा चल रहा है, घर में सब कैसे हैं, और सोचने के ज़ाविये किस तरफ हैं पाकिस्तान की इस खूबसूरत कौम को, जिसके अंदर जज्बात को जल्दी से बहुत अच्छी डायरेक्शन दी जा सकती है। मैंने देखा है कि पाकिस्तानियों में बहुत ही शानदार पोटेंशियल है कि वो अपने जज्बात को जज्बाती होते हैं, पर फिर उनके जज्बात को कोई डायरेक्शन मिल जाए तो बहुत अच्छे मुस्तहकम होके जल्दी से सीखने के अमल पर भी चले जाते हैं। अपना अपना तजर्बा है। मेरा तजर्बा तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, जितने लोगों से मिलता हूँ। तो ब्रेक की बात हो रही थी, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और आपसे मजीद बातचीत करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से लेट्स टॉक विद विलिंग वेज में मोहसिन नवाज हूँ, और मैं हूँ जहाँ आरा। समीरा इफ्तिखार हमारे साथ हैं। बिल्कुल। और हम सब आपको कैसे लग रहे हैं? यानी मेरा मतलब है कि मूड मिजाज के लिहाज से कैसे हैं, वो जो अभी आपने बात की थी। एनर्जीज के हिसाब से कैसे हैं, मोटिवेशन के हिसाब से कैसे हैं, और आपने हमें ये भी बताना है कमेंट्स के थ्रू मोहसिन साहब। जी, हमें आप सबने बताना कि है पहले तो कि हमने अपना हाल आपके सामने रखा, अब आप बताइए आप कैसे हैं। आप कैसे, आपकी मोटिवेशन कैसी है, और कौन सी बात है जो आपको परेशान, वैसे ये मैसेज तो हम हर शो में देते हैं कि कौन सी बात है जो आपको परेशान की देती है, मगर आज के शो में तो अपने खास तौर पे बताना है ताकि हम आपको बताएं कि परेशानी जो है वो सोल्यूशन नहीं है किसी भी मसले का, और वासिफ साहब ने क्या खूबसूरत बात की है कि परेशानी जो है वो हालात से नहीं बल्कि ख्यालात ख्यालात से से पैदा होती होती है। है, जन्म लेती है। बिल्कुल जी। ठीक मोहसिन साहब, कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। जी 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 और लास्ट टाइम ये हुआ था क्योंकि इट वाज वेरी पावर शो, लास्ट टाइम हमारा कमेंट्स तो हो ही नहीं सके थे जी, हमारे, जी। अगर आपको याद हो तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कपड़ों की बातें होती रही थी। कपड़ों की बातें होती थी, और कपड़ों में भी फिर जूतों की बातें भी आ गई थी बीच जी में उसमें। जी जी, अच्छा जी, सुल्तान साकिब बलोच साहब कह रही हैं कि खूबसूरत आगाज। बहुत शुक्रिया सुल्तान। मलक बिलाल अहमद कह रही हैं हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत आगाज। बहुत शुक्रिया मलिक बिलाल अहमद। सुल्तान साकिब साहब फिर से कह रही हैं कि रातें जागते रहोगे तो दिन के काम अधूरे होंगे, वाह, नींद पूरी नहीं होगी तो ख्वाब कैसे पूरे होंगे। अरे वाह, वाह 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 वाह। सुल्तान साहब जो है ना सुल्तान साहब, ये आपने मेरी वाली बात जो है ना, वैसे उसका शेर उसको शेरी अपनी रूप दिया है। शेरी अंदाज में बयान किया है, जिसपे कि आपको दाद बनती है आपके लिए। देखिए मोहसिन साहब कितने कॉम्पिटेंट हैं हमारे जी। जो अवाम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो अवाम भी नहीं, ये तो खवास में है। खवास सुल्तान में। साकिब बलोच। अच्छा जी, आफिया नसीम साहबा कह रही हैं कि बस द टॉपिक। आफिया, टॉपिक यही है कि कैसे हम अपने आप को मस्बत रख सकते हैं। और क्या आपकी रूटीन्स नॉर्मल हैं? क्या आप अपने एजेंडा से हटे हुए तो नहीं? जी अगर जी ऐसा है तो जायजा ले लें, और अपने फोकस को कहाँ रखना है, जी। जहाँ इख्तियार है वहां रखना है। अगर ऐसा ही है तो मुबारक हो, और अगर आपका फोकस हटा हुआ है तो उसको हमने अपनी जगह दुरुस्त पे करने, दुरुस्त करना है। आप हमसे मदद ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी टॉपिक है कि क्या आपकी नींद पूरी है, सो रहे हैं अच्छे से, आप खा पी जी। रहे हैं, आप बिला वजह की सोचिए परेशान तो नहीं कर रहे हैं, ये भी तो है ना मोहसिन साहब बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अदनान गफूर साहब कह रही हैं कि ऑल टाइम फेवरेट शो बहुत शुक्रिया अदनान आपका। अमरीन अफजाल अफजाल रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत शुक्रिया अमरीन। और कहती क्या है? कह रही है वंडरफुल प्रोग्राम विद द ब्रिलियंट पीपल। थैंक यू सो वेरी मच। आज टू। अब बहुत शुक्रिया उज़्मा आपका। उज़्मा साहबा बड़ी ख़ास है। अच्छा जी। और ये इस वक्त जो इन्होंने बात कही है कि हमारे पेशेंट्स के लिए भी, जो हमारे ज़ेर इलाज हैं, जी। उनके लिए भी, फैमिलीज़ के लिए, ये बड़ा ही ज़बरदस्त मैसेज है। उज़्मा साहबा बड़ी जहाँ दीदा शख्सियत है। आपने वाकई ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे पेशेंट्स के लिए, पेशेंट्स के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। जी क्योंकि पेशेंट्स जो हैं वो तो सुपरवाइज्ड होते हैं ना बाय फैमिलीज, तो फैमिली मेंबर्स अगर स्टेबल होंगे, पॉजिटिव होंगे, रिलैक्स होंगे, तो ऑब्वियसली पेशेंट जो हैं वो सेफ हैंड्स में होंगे। एग्जैक्टली। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पेशेंट्स पे भी काम करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियां, जैसे प्रोग्राम के आगाज में ये था कि क्या आप वो काम कर रहे हैं जो आपकी जिम्मेदारी है, अदरवाइज तो हम कौन सा काम करते हैं जो हमारी जिम्मेदारी नहीं होता। जी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे घर बन रहा होता है ना मोहसिन साहब, जी एक लतीफा भी है कि जब घर बन रहा हो ना, खासतौर पे लेंटर पड़ रहा हो, जी
تو بڑی عوام اکٹھی ہوئی ہوتی ہے باہر جی جی اور اور لینٹر کھلنے پر پھر دیکھ بھی شاید یا کچھ دیکھ وہ تو چلے ایک اچھی ہے نا کہ دیکھ مجھے بڑا ہوتا ہے جو کہ دیکھ شیک بانٹ رہی ہو نا. ٹھیک میں بھی کہتی ہوں کہ شاید کوئی آفر ماری دے مگر اب دور ہی چینج ہو گیا ہے. تو اس میں مجھ سے جب لینٹر لیبر ڈال رہی ہے گھر والا لک آفٹر کر رہا ہے اس کو, عوام میں بھی کول کھڑی ہو کے کہہ رہی ہوں لگتا ہے بجری تھوڑ جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ والا رول نہیں لینا کہ جس میں ہم پریشان ہو کے بجری تھوڑے گی کہ ودے گی. ایکچولی جن کی ذمہ داری ہے ان کو پتا ہے کہ کتنا مسالہ کہاں ڈالنا ہے. واہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو انورٹڈ کا مسئلہ ہے. آپ سمجھ گئے نا ہاں جی ہاں جی کہ کتنا مسالہ کتنا مسالہ کہاں ڈالنا ہے, مطلب ریت سیمنٹ کا کتنا اور پڑا اور پیچھے ذخیرہ کتنا ہے, ذخیرہ کتنا ہے اور ان کو پتا ہے. تو آپ اور یہ بھی کہ آگے اگر مسالہ زیادہ لگ گیا ہاں تو چنوتی کہاں پہ کتنی کر دی. تو اس میں یہ اور چتاونی کتنی دی. ہاں اور بتانا کتنا ہے, بتانا کتنا ہے, یعنی دیکھیں نا کہ زیادہ فضول خرچی بھی نہیں کرنی. نہیں ناٹ. اور اس میں تو ہماری قوم ویسے ہی بہت ماسٹر ہے. تو چتونی کہاں دینی ہے اور چتاونی کہاں دینی ہے تو یہ جن کا کام ہے انہی کو ساجے. ہمارا یہ کام ہرگز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پائیں تسی میزائل صحیح فائر نہیں کیتا. میرے خیال ہے ہم دنیا کو یہ سکھا بھی سکتے ہیں کہ ایسے ماحول میں کیسے رہا جا سکتا ہے, اس طرح کی سچویشنز کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے. جی بالکل ہمیں ہی دیکھ کے آپ دیکھ لیں گے کیسا ڈیل کیا جا رہا ہے. مطلب آپ شاید میرا خیال ہے یہ بھی محسن صاحب ایک ڈیپ ڈاؤن کہیں بہت ہی ایک اچھی سی فیلنگ یہ بھی ہوتی ہے کہ وی آر یونائٹ الحمدللہ, وی آر ان اے سیف ہینڈز الحمدللہ. اور اس میں یہ ہے کہ وی آر ایٹ رائٹ سائڈ پہ. بالکل کوئی زیادتی نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم نے پورے سے پورا چیزوں کو مینج کیا, کوشش کی ہر ممکن. اور باقی یہ ہے کہ جو وہی بات اکثر ڈاکٹر صداقت اکثر بات کرتے ہیں اور ہم بھی اپنے شوز میں کہ پھر بھی جو سب سے خوبصورت طریقہ ہے نا مسائل حل کرنے کا وہ ہے بات چیت کرنا. مگر بات چیت جو ہے وہ تو تبھی ممکن ہے نا محسن صاحب اگر آپ بھی تیار ہوں گے اور میں بھی تیار ہوں گی, دونوں پارٹیز تیار ہوں گی. ادروائز تو پھر تو یہی ہوگا کہ اگر میرے پاس مسالہ پورا ہے تو میں تو چتاونی پھر دے آؤں گی. دوسری بات یہ کہ یہ سارا کچھ کر کے بھی پھر بھی ڈائلاگ ہی ہے, پھر بھی مطلب سب کچھ کر کے بھی ڈائلاگ ہی ہے. اب بڑوں کو ڈالنے کا کیا فائدہ بھائی, خود میں مل بیٹھ کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. دنیا کے ہر مسئلے کا حل بات چیت ہے. اور ویسے میں آپ سے بتاؤں کہ وہاں کے جو سیانے ہیں یعنی سرحد پار کے وہ لوگ جو کہ سمجھدار ہیں, سیانے جو ہمیں فالو بھی کافی کرتے ہیں, تو وہ بار بار اس بات کا اعادہ بھی کرتے ہیں, اظہار بھی کرتے ہیں کہ وہ جیسے اب ہمارے اس سارے کام سے بہت سیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو اس بات کا بھی تو ایک بڑا اطمینان ہے کہ الحمدللہ جیسے ہم پاکستان کی مینٹل ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ سائیکیٹرک النیسز ایڈکشن کے ٹریٹمنٹ کی سب سے بڑی پائنیئر آرگنائزیشن 50 ایئر سے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہوئے ڈاکٹر صداقت علی کی زیر قیادت یہ ساری جو ٹیم کام کر رہی ہے, کتنا زبردست. تو اگر ہمارا ایک ادارہ, ایک آرگنائزیشن اتنے سارے لوگوں پر اپنا ایک انفلوئنشل رول رکھ سکتی ہے جس میں ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں, اور اگر آپ فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر ہمارے مختلف فورمز پہ جائیں تو یہ تعداد آپ کو ملینز میں نظر آتی ہے جو اس کام کو دیکھتے ہیں, پسند کر. بس میرے اسی فون پر جو میرے ہاتھ میں ہے وہاں سے بہت سارے تعریفی میسیجز آتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات کوئی ایسی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے, جیسے مجھے اور آپ کو تو یہ چیز کلیئر ہے کہ اس وقت ہم پہ جو یہ جنگ مسلط کی گئی اس کے پیچھے کیا سیاسی مقاصد تھے. یعنی اگر نفسیاتی جائزہ لیا جائے تو وہاں کا نفسیاتی جائزہ یہ بنتا ہے کہ مطلب اب تو انہیں آرام کرنا چاہیے تھا جی, جو اس وقت یعنی فیصلوں کی منصب پہ بیٹھ کے جس سے پورے خطے کا من خراب ہوا اور کروڑوں لوگوں کی زندگیوں تو اس بڑھاپے میں جو صاحب ہیں وہ جو ان کے بڑے ہیں ان کو تو آرام کی ضرورت ہے, اور جبکہ آپ کسی ایسی پوزیشن پہ ہوں اور وہاں سے تو یہ تو پھر اور وہاں کی عوام کو بھی اس کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد کیا ہے. اور اگر عوام کو اندازہ ہے نا, یہ جو ہمارا بیسک آج کا
ہے بھی بات چیت کا وجہ کہ ہم مثبت پیغام دیں گے، جی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا میکسیمم رول جو پلے کر سکتے ہیں دونوں سائڈ سے وہ زیادہ یہ ہے کہ کیسے ہم خود کو پرسکون رکھ سکتے ہیں. نتیجہ میں ہوتا ہے. جی. یعنی آپ کا پرامن رہنا، آپ کا دوسرے کے لیے پازیٹیو رہنا، جی. یہ ایک تھاٹ ہے. یہ جو مسکراہٹ ہے یہ بھی ایک لینگویج ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ کسی دیار کسی دیس میں چلے جاؤ، زبان سارے سمجھتے ہیں مسکرانے کی. تو اسی طرح سے امن کی اور محبت کی بھی ایک زبان ہے. اور اس کو اگر آپ سپریڈ کرنا شروع کریں فضا کے اندر، فوکس پر کام، اپنی توجہ پر، اپنی صلاحیتوں پر، تو میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کے کسی بھی ماحول میں کسی بھی طرح سے آپ ناکام نہیں ہو سکتے. آپ آگے آپ پروگریسو ہی رہیں گے. جی سمیرہ، آپ کو ہم نے اپنے ساتھ شو میں بٹھایا جی تو جی ہے، پر ہم اپنے خیالات کا اظہار زیادہ کر رہے یہ ہیں. سمیرہ ایکچولی دیکھیں آپ، جی اور اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہمیں بالکل نہیں پتا کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے، یہ بھی ہمارا جوش جذبہ ولولہ ہے اور اس پہ کہ کوئی شک ہی ہم نہیں ایک ہے. دوسرے کو خاموشی کرانے پہ ہوتے ہیں کہ بس میری بات مکمل ہو جائے. نہیں اصل میں آپ کی بات اتنی زبردست تھی اور میں انجوائے کر رہی تھی کہ آپ کتنی زبردست بات کر رہے ہیں اور سائیکولوجیکل اسپیکٹ سے لنک کر کے بات کر رہے ہیں. دیکھیں جب مسئلے آتے ہیں یا پھر جو پرابلمز آتی ہیں اس میں کمپیریزن اور کمپٹیشن بہت ہو تو مسائل بڑھتے ہیں. جیسے ساری بات چیت ہماری دیکھی جائے تو وہ یہی ہے جس کے اندر ہم اپنے جذبات صرف کر رہے ہوتے ہیں کسی ایسی جگہ پر، ایسی سچویشن پر جو کہیں نہ کہیں کسی کمپیریزن یا کمپٹیشن کی ریزن ہوتی ہے. ہمیشہ پرسنل ایکسیلنس ایک ایسا پرسنل ایکسیلنس سے ہی آپ اپنی لائف میں بہتری لا سکتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں آپ کی اپنی ذات سے. چینج ہمیشہ اندر سے آتا ہے، یہ ہم نے جیسے پہلے بات کی، لیکن اس کے لیے آپ کو اس بارے میں سوچنا ہوگا، اور ایک سوچ ہی ہوتی ہے جو آپ کے ایکشن کو چینج کرنے کی طرف لا سکتی ہے. اب اسی کے اندر جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اور یا سیکھ بھی سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں. مطلب اگر چینج لانا آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہ کیسے میں چینج، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تو ہوں چینج ہونا مگر مجھے پتہ نہیں ہاؤ ٹو چینج مائی سیلف. تو اس میں جیسے ابھی یہ بات پرسنل ایکسیلنس کی کر رہی ہیں، تو پرسنل ایکسیلنس کا جو آغاز ہے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ریسیپٹیو بنا لینا. کہ آپ جیسے اس کا پہلا قدم کیا ہوگا، اگر آپ کسی انزائٹی بے چینی میں ہیں تو ڈیپ بریدنگ سے، مائنڈ فلنس سے اور گراؤنڈ ریالٹی ٹیکنیکس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے تو ایموشنلی کام کر لیں گے. اچھا، پھر آپ وٹ ٹو ڈو نیکسٹ پر چلے جائیں گے، اور اس طرح سے آپ اپنے ایجنڈا پر کام کرتے کرتے اپنے پرفارمنس سے، اپنے کام سے کنیکٹ ہو جائیں گے، اور ارجنٹ امپورٹنٹ آپ کا کلیئر ہوتا جائے گا. اچھا، میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک اور بات بڑی اس میں سے جو خوش آئند نظر آ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ کے زمانے میں وہ تو پوری دنیا کا مسئلہ تھا، تو پوری دنیا نے اپنے اپنے مزاج اپنے اپنے طریقوں سے ڈیل کیا، ہے نا؟ اچھا، پاکستان نے دنیا جانتی ہے کہ جس طریقے سے ڈیل کیا، پاکستان بہت اچھے ڈیل کرنے والے ممالک میں تھا. پاکستان میں ہم نے دیکھا ولنگ ویز میں ہم نے ایک مثال یہ قائم کی کہ ہماری کوئی ایکٹیویٹی نہیں رکی. ہمارے گروپ سیشنز، ہماری ساری ایکٹیویٹیز بالکل ایز پر روٹین تھیں. اور ہوا یہ کہ الحمدللہ یہاں کوئی ایسا وہ جو کنٹیجیس ہونے والی بات تھی ایک دوسرے کو، یہاں کوئی ایسا کیس رپورٹ نہیں ہوا. تو یہ جو الحمدللہ ایک ٹھوس مضبوط حکمت عملی ہوتی ہے ایسے کسی چیلنج کے موقع پر، وہی پالیسی اس وقت بھی ہے. اور وہ پالیسی کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایموشنلی کام رکھنا ہے، اسٹیبل رکھنا ہے، اور اپنے کام کی طرف فوکس رکھنا ہے. جی بالکل. اچھا، جب آپ فوکسڈ ہوتے ہیں نا محسن صاحب، تو آپ کے موڈ بھی بہت مینٹین رہتا ہے. لیکن جب آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اور آپ کو کہیں سے آپشن مل جاتی ہے نا، تو پھر آپ کے ڈی ٹریک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور آپ کے پھر موڈ خراب ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. آپ اسٹیبل نہیں رہتے ہیں، اور پازیٹیو تو پھر بالکل بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل. تو اس ایسی سچویشن کے اندر آپ جتنا خود کو مصروف رکھیں گے، جتنا فوکسڈ رہیں گے، جتنی گے، اتنے ہی جو آپ کی زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گی. اچھا، رومرز بہت زیادہ پھیلتی ہیں، افواہیں. اچھا، یہ جو کچے کان والے بعض اوقات ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جلدی سے، اچھا دو چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی افواہ سنی تو ابھی اس کی کوئی تصدیق نہیں کی، نہ اس بارے میں کوئی ریلائبل سورسز سے کوئی اتھارٹی چار کو بتایا. اچھا، یہ جو کام ہے یہ بھی ہم نے نہیں کرنا. اسی طرح سے یہ جو یعنی ایک خبر کا دوسرے تک
पहुंचाना है, ये इतनी भारी जिम्मेदारी है, जी, इतनी जी। बड़ी जिम्मेदारी है। जी। ये ऐसे ही है जैसे हम कई दफा कहते हैं कि हमारे जो ख्यालात हैं उनके भी बच्चे और फिर पोते भी होते हैं। एग्जैक्टली ख्यालात बच्चे देते हैं जी और फिर वो कुनबा बनाते हैं। जी जी। और ऑब्वियसली फिर जितना कुनबा बड़ा होगा आप उसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं mostly। अच्छा, फिर एक ये और भी काम वंस अपॉन अ टाइम किसने कहा था मोहसिन साहब ये बात? कि कुंभा जितना बड़ा होगा, आप उसी के इन्फ्लुएंस में आते हैं, ये याद आपको बात ये याद ये तो मुझे पता है कि किसी बड़े आदमी ने कहा है। बड़े आदमी ने ना, बड़ी खातून ने कहा था मोहसिन साहब। सही है। अच्छा जी जी जी। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम बात का ना वर्स सिनेरियो, यानी जैसे हम सब की जिंदगी में ये होता है कि कभी कोई ना कोई हम सब के साथ ऊंच नीच हुई ही होती है जिंदगी में, हम्म, तो हम उन वाकयात को रिकॉल कर करके बार बार जी 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 तो जी। अपने आप को और ज्यादा तकलीफ देते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं दूंगा कि जैसे ये बाज लोगों का कुछ थोड़ा नफ्सियाती रुझान भी ये होता है कि वो खबरों में से भी कोई ऐसी खबर, फिर उसी खबर को दूसरी जगह से, फिर उसी बिल्कुल, खबर को बिल्कुल। तीसरी, यानी वो कोई वाकया एक दफा हुआ होता है और हम अपने दिमाग को उस वाकये को बार बार रिपोर्ट कर रहे और होते इतनी हैं। कॉन्फिडेंस से बात कर रहे होते हैं, जैसे अभी आजकल की सिचुएशन में somebody told me yesterday कि आपके इलाके में फिर रात ये हुआ, तो मैंने कहा नहीं भाई, आई वाज देयर, आई एम लिविंग देयर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो बहुत लोगों को बताया भी और पूछा भी, तो ऐसा मत करें और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि आप तो शायद उससे कुछ इंटरटेनमेंट गेन कर रहे हैं, या आपका ब्रेन है जो आपको बार बार मैसेज दे रहा है, कोई थ्रिलिंग आपका कोई एस्पेक्ट भी हो सकता है। जी, जी। मगर जिसके साथ आप उस न्यूज़ को शेयर करें तो हो सकता है वो उसके लिए उसके बड़े सीरियस कंसर्न्स हों और वो उसको आप उसमें पैनिक क्रिएट कर रहे हो। जी। तो जो अभी जिम्मेदारी की हम बात कर रहे थे ना, तो जिम्मेदार होने का पहला सबूत तो ये है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन को कभी भी स्प्रेड नहीं करना चाहिए। यानी ये तो चले थोड़ी क्रूशल सी सिचुएशन है ना आजकल हमारी, थोड़ी क्रूशल है, मगर नॉर्मली भी यानी जिंदगी एट पीस जो कि इंशाल्लाह है भी और हो भी जाएगी, तो उसमें भी किसी भी र्यूमर को, फॉल्स इंफॉर्मेशन को, बल्कि इस्लाम में भी इस बारे में है बहुत जी, सारी जी। हदीस हैं कि कभी झूठी बात मत फैलाओ बगैर किसी एविडेंस के, एग्जैक्टली और इसके ऊपर बड़ी सख्त बल्कि नापसंदीदगी का इजहार भी किया जाता रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज भी इसमें है कि आप पेसिमिज्म हो या ऑप्टिमिज्म हो, जी दोनों में एग्जेजरेट नहीं करना, दोनों में एक इंतहा को नहीं जी छूना। जी जी, अच्छा, बैलेंस। उसकी बैलेंस, उसकी वजह ये है कि बाद औक़ात हम पेसिमिज्म में इंतहा को छूते हैं, जी जी बाद औक़ात हम जो है वो ऑप्टिमिज्म के अंदर बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर रहे जी होते जी हैं। जी जी। तो एक जो मुतवाजिन सोच है, वही लॉजिकल सोच जो है वो आपको मदद देगी। बस यू जस्ट हैव टू बी एक्चुअली मोहसिन साहब, जिसमें मॉडरेट है ना, यानी आप वो कहते हैं ना कि आप हर चीज के लिए तैयार रहें। यानी अगर आंधियों का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो हमने तैयार होना होता है कि हमने कपड़े सुखाने का टाइम क्या है और फिर जिम्मेदारी से उतार लेने हैं, जी। क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव हो और आप कहें कि आएगी नहीं आंधी, मौसम बहुत अच्छा है, तो लॉस का फिर खतरा होता है। वी जस्ट नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमने बैलेंस रहते हुए, मॉडरेट रहते हुए, अपने आप को महफूज रखते हुए, सबसे पहले तो अपनी ज़हनी सेहत को महफूज रखना है हमने। जी समीरा, जी जी। ये आपकी बात से भी कनेक्टेड बात बनती है, वो आपने बारिश की बात की थी, तो जहाँ हाँ, ने आंधी की बात कर दी। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। जैसे देखें अभी भी यही डिस्कशन हमारी बहुत ज़बरदस्त वे में चल रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटरकनेक्ट होती हैं या कहीं ना कहीं उनका लिंक जब आपस में जुड़ता है। अभी जैसे मिस जहारा बात कर रही थी कि बहुत सारी ऐसी खबरें जब फैलाई जाती हैं तो उसमें से जब वो आगे जाती हैं तो उसकी भी शक्ल बदल जाती है बाज़ दफ़ा। तो इन सब चीज़ों में हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेते हुए ये पहचानना है कि क्या ये बात सही है, और अगर है भी तो उसमें सच्चाई कितनी नोयत की है, या फिर उसमें जो हमें सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली है तो क्या वो पर्सन वैलिड है भी या नहीं, या फिर वो मन घड़त बातें आपको सुना रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमने पहले खुद एक प्लेटफॉर्म से कंफर्म कर लेना है कि क्या ये रियलिस्टिक बेस्ड हैं भी या कि नहीं। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बाज़ दफ़ा जब इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ होता है जिस पे एक्सपीरियंशियल एविडेंस, जैसे हिस्ट्री हमें बताती है कि अगर इस तरह का माहौल हुआ तो बाद में ये हो गया, या ये तरह की कंडीशन थी, या ये सिचुएशन जनरेट हुई थी, उससे भी बहुत सारे लोग एक्सपीरियंशियल एविडेंस की तरफ चले जाते हैं। वो ऐसी बातों को सुनने से भी घबराते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो उस बारे में सोचना भी नहीं चाहते, और अगर कोई इस तरह की बात जो कि गलत इन्फॉर्मेशन भी कोई उनको दे देता है
وہ ڈبل پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس سب سچویشن میں جو آپ کا ایموشنل لیول ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے کہ جب آپ اپنی ان انفارمیشن کو ایک اوتھینٹک سورس سے سنیں گے یا اس کے بارے میں پڑھیں گے یا سرچ کریں گے تو آپ کو بہت ہیلپ ہوتی ہے اس سچویشن کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ وار اگر یا جو ابھی ہم ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا جواب ان کو دیا تو اس جواب کے بدلے ہم بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ رک جائیں گے تو بات یہیں پر ہی رک جائے گی. تو یہ بھی ایک ڈائلاگ کی ہی فارم ہے کہ جب آپ بات چیت کو بڑھاتے ہیں تو اس کے اندر آپ سمجھداری سے کام لیتے ہیں. ایگزیکٹلی کتنی اہم بات آپ نے کہی کہ سمجھداری کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ اپنا پیغام آپ بات کرتے رہتے ہیں, آپ پیغام دیتے رہتے ہیں, اور ہمارا پیغام بدلا نہیں ہے. یعنی یہ ایک خاص بات ہے جیسے سمیرہ نے بات کی کہ ہمارا پیغام کل بھی یہی تھا, آج بھی یہی ہے اور آئندہ بھی یہی رہے گا کہ اپنی جو اپنے ارد گرد پازیٹیوٹی کو, جیسے ہم تو یہاں ولنگ ویز میں پازیٹیو افرمیشنز کا کتنا زیادہ ہمارے ہاں ایک پریکٹس ہوتی ہے. جب ہمارے جو پیشنٹس ہیں نیورو پلاسٹیسٹی کے پروگرام میں اپنے لیے ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ تیار کرتے ہیں. جی تو یہ جو پازیٹیو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں انسان کی خوبصورتی یہی ہے. اچھا, جب اگر آپ کی باتوں سے, آپ کی سوچوں سے, آپ کے کام سے ڈرانا, دھمکانا, نیگیٹو ہونا, مایوس ہونا, سب کچھ مک گیا ہے, پتہ نہیں کی بنے گا. اچھا, بس ان قیامت آنا لیے, بس کی فائدہ زندگی دا. اچھا, یہ جو ہے نا یہ ایک انسان کے شایان نشان نہیں ہے. انسان کے شایان نشان یہ ہے کہ وہ ایک پروقار طریقے سے آخری سانس تک اس میں اتنا محسن صاحب جوش اور ولولہ ہونا چاہیے, امید ہونی چاہیے زندگی کی اور زندگی گزارنے کی. خلیفہ جو ہوئے اللہ کے زمین پر, اللہ نے انسان کو جو بھیجا ہے تو بڑی ساری اس سے امیدیں لگائی ہیں کہ انسان کے اندر اس نے اپنے اوصاف کو چٹکی چٹکی بھر ڈالا ہے. تو ہم سب انسان اپنی اپنی زندگی میں بہترین کارہائے نمایاں سر انجام دینے کی بھرپور بہترین صلاحیت رکھتے ہیں. سو کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, آپ اپنے آپ کو ایسٹیمیٹ کریں, نہ اوور ایسٹیمیٹ کریں نہ انڈر ایسٹیمیٹ کریں. اچھا, ایسٹیمیشن کا طریقہ کیا ہوگا؟ روزانہ جائزہ, صبح اور شام, دن کا آغاز پازیٹیو افرمیشن سے, دن بھر اپنی کارکردگی میں اپنے تھاٹ اور موڈ کے پیٹرنز کا جائزہ لینا, اور شام تک پہنچتے پہنچتے اپنے دن کی کامیابیوں پر غور کرنا. جو رہ گیا اس پر کوئی ریگریٹ نہیں, اس کے لیے اگلے دن اچھی منصوبہ بندی کرنا. سونے سے پہلے اپنے رول کو بہترین انداز سے جو کر پائے اس پر شاباش, جو نہیں کر پائے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں بلکہ اگلے دن کی پلاننگ, اور پھر قدرت کے حوالے کر کے اپنے سارے نظام کو بے فکری سے سو جانا کہ اے اللہ میں نے آج اپنے حصے کا کام کر لیا ہے, آپ نے مجھے یہ زندگی دی, یہ دن دیا, میرے پاس امانت ہے, میں نے اس کو بھرپور طریقے سے گزارا, اب میں سوتا ہوں, اب کل اٹھوں گا, کل اپنا چارج دوبارہ سنبھالوں گا. تو یہ جو سارا کچھ ہے یہ ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سے ڈسکس ہو رہا ہے. جی بالکل. ابھی ایک کمنٹ میں پڑھی تھی محسن صاحب, آپ جیسے بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے تو میں ساتھ ساتھ لائیو, آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں, مجھے یہ بھی بڑا احساس ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کے ذہن میں سوال ہے یا سوچ ہے تو ہم ساتھ ساتھ ہی اس کو بھی ایڈریس کریں. تو ایک بیچ میں پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کے شو کے ٹائمنگ کیا ہیں, تو شو کے ٹائمنگز ہمارے 1 2 3 ہیں, ایسے ہی ہے نا, 1 2 3 اس میں بس جو درمیان والا 2 ہے وہ TO2 ہے, 1 سے 3 تک ایسے کر لیتے ہیں نا. ہر ہفتے کی دوپہر 1 سے لے کے 3 بجے تک میں, محسن صاحب اور ہمارے ساتھ ہماری کوئی ایکسپرٹ گیسٹ آپ کے گھروں میں موجود ہوتی ہے, موبائل فونز پہ, آپ کے جو ٹی وی اسکرینز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, وہاں پہ, اور ایک کلک کے فاصلے پر آپ ہمیں جوائن کر لیتے ہیں. بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, آپ سے باتوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز میں میں ہوں جہاں آرا, میں ہوں محسن نواز اور سمیرہ افتخار ہمارے ساتھ. سمیرہ, آپ کے لیے میسج آ گیا. نہیں, ادھر کمنٹس میں نہیں آیا, وہ نیچے کے لیے آ گیا. آپ کے لیے فیملی آ گئی جن کے ساتھ آپ نے سیشن کنڈکٹ کرنا ہے. تو مطلب سمیرہ یہ دیکھیں کہ اپنے کام میں سے ٹائم نکال کے انہوں نے ہمارے شو کو رونق بخشی ہے, اور اب دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے, اور تھوڑی دیر بعد ہم بھی. بالکل, آپ سب کا بہت شکریہ, آپ سب نے سنا, اور
अल्लाह हाफ़िज़, देखा फिर भी आपसे आपको। देखा भी और फिर Thank आपसे you so दोबारा much. बात होगी। ओके, Thank अल्लाह you. चलो हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने इनपुट दिया, बहुत अच्छा लगा, हाफिज़, थैंक यू सो अल्लाह मच, अल्लाह हाफिज़। ये थी जी समीरा इफ्तिखार हमारे साथ, हमारी साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल, जो कि अपने अगले असाइनमेंट के लिए सेशन को कंडक्ट करने के लिए गई हैं। यहाँ जी जी ये जो हमारे काम में लोग अपने पर्सनल बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ जी आते जी हैं, जी उसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं। जी जैसे मैंने ये देखा है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, जिसकी रेशो WHO ने भी बताई कि काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जी उन्होंने कहा जी कि 80% लोगों को कभी ना कभी लाइफ में डिप्रेशन यानी क्लिनिकल डिप्रेशन जी एक्सपीरियंस करना पड़ता है। एग्जैक्टली। और मोहसिन साहब इवन उन्होंने ये भी कहा कि जो आइंदा 10 साल हैं उनमें अगर जो ज्यादा अमवात का खतरा है ना, हाँ, तो उसकी मेन वजह डिप्रेशन होगी। कॉज ऑफ डेथ जो है वो 2030 में ये जी WHO कह रहा है। जी अच्छा, तो अपने आप को डिप्रेशन से बचाना, जी प्रिवेंट करना, ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ एग्जैक्टली मोहसिन साहब। और डिप्रेशन भी कोई ऐसे नहीं होता कि ओवरनाइट आप जी रात को सोए सुबह उठे तो डिप्रेशन, जी, आपको पता चला कि जी अब मुझे तो डिप्रेशन है, जैसे कि फीवर होता है। ये होते होते होता है। होते 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 हैं, और उसकी जो मेन रीजंस हैं वो ऐसे ही हैं। व्हेन यू आर नॉट मैनेजिंग योरसेल्फ, हम्म, when you are not addressing your problems, when you are not sort out your anxiety, stress, अपने मूड को नहीं प्रायोरिटाइज करें, जब आप अपनी नींद को कंप्रोमाइज करते हैं, जब जब आपको पता चल गया कि कोई वजह के बगैर मुझे बेचैनी और परेशानी है, और आप उस वजह पे ढूंढने पे या वजह तलाश करने में ही लगे रहते हैं या रिलेट करते हैं, जी, और राइट टाइम पे राइट हेल्प नहीं लेते, तो फिर एक दिन आपका डायग्नोसिस होता है कि यू आर डायग्नोज्ड विद क्लिनिकल डिप्रेशन। ऐसे और अनफॉर्चुनेटली मोहसिन साहब, जी बच्चों में भी इंडो पाक में इन दो ममालिक जिनकी भी हम बात भी कर रहे हैं, और एक के हम शहरी भी हैं और दूसरे भी हमारे जो हमसाया मुल्क है, जी जी वो उसमें भी जो चाइल्ड डिप्रेशन का रेशो है जी वो दुनिया के बाकी ममालिक से ज़्यादा है। जी लाइक इट्स 43%। जी यानी 2024 में ये जो WHO की रिसर्च आई थी, 25 की अभी ड्यू है, जो अब आएगी सितंबर में, अक्टूबर में, यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे वो फिर वो सारी रीडिंग्स जो हैं वो शेयर करते हैं। तो अभी जो 2024 की थी, तो उसमें 43% जो रेशो है वो इंडो पाक में आई है, एशियंस कंट्री में, चाइल्ड डिप्रेशन की, जो कि बहुत हाई रेशो है। बहुत हाई और रेशो है। जी बहुत यानी हाई। इसका मतलब है कि हमारी असल तवज्जो तो हमारी अगली जनरेशन पे होनी चाहिए हाँ कि जो जिनकी अपब्रिंगिंग हो रही है, एग्जैक्टली। तो उनको हम किस तरह के माहौल में डेवलप कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो अब देखें कि हम अभी आजकल की सिचुएशन अगर आप देखें, तो बेसिकली तो हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं। जी हम नफरतों के बीज भी बो रहे हैं, हम उनको नफरत करना सिखा रहे हैं, हम उनको दुख, गम, तकलीफ का एहसास भी दिला रहे हैं, दिखा रहे हैं, बेबसी के साथ भी उनके अंदर ये रहना फीलिंग। सिखा रहे हैं हम हाँ उनको। एग्जैक्टली। फिर हम उनको एक अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली एक मैसेज ये भी दे रहे हैं, माइट इज राइट वाला मैसेज भी हम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जिसको दुनिया में कोई अब पसंद नहीं किया जा रहा। जी यानी ये वो टाइम था जबकि एनिमल ब्रेन से ज़्यादा ऑपरेट किया जाता था, जी तब माइट इज राइट वाला जो था ना एलिमेंट, उसको वो ज़्यादा हाई था। जी आजकल का तो दौर है तो वो ये कि जो जितना साइंस के असूलों पे अमल करेगा, जितना समझ बूझ वाला होगा, जितना सेन होगा, जी मेंटली स्टेबल होगा, वो उतना ही राइट होगा, एग्जैक्टली उतना ऑथेंटिक भी होगा। उतना वो जिंदगी में ग्रो करेगा, Exactly. उतना अपने लिए दूसरों के लिए फायदेमंद होगा, Exactly. उतना प्रोडक्टिव रोल वो अपने जी जी माहौल के लिए, माशरे के लिए, मुल्क के लिए वो किरदार जो है वो अदा कर रहा होगा। बिल्कुल। तो इन सब चैलेंजेस के साथ भी अगर हम अपनी प्रायोरिटीज में ये रखते हैं कि हमने सिर्फ नीचा दिखाना है, और हम रात के अंधेरे में किसी जगह पे वायलेशन करते हैं, किसी के घर में, इसी ऐसे ही हो गया ना जी मोहसिन साहब के जी दो जी लोग अपने अपने घरों में हैं, और आप बिला वजह बगैर किसी एविडेंस के जस्ट अज्यूम करते हुए अगले के घर के ऊपर आप कुछ ऐसी स्ट्राइक कर देते हैं, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डरा धमकाएंगे। तो दिस इज एक्चुअली ये वो दौर रहा नहीं है अब। तो हम जो आज बीज रहे हैं बेसिकली, शायद काटना तो हमने वही है। काटना हमने, और हमारी जनरेशंस ने भी मोहसिन साहब। जी जी और हमारी जनरेशंस जिस टाइम में आएंगी तो वहां पे तो फिर ये टाइम होगा भी नहीं, सेकंड्स की बात होगी। जी तो वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। कुदरत के जो इशारे हैं ना वो हम सबको मिलते हैं जी अपनी जिंदगी में। वो एक साहब थे,
ان کی ایک بڑے دانا سے ملاقات ہوئی، جوانی کا زمانہ تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ قدرت تمہیں آگے بڑھتے ہوئے اپنے زندگی کے سفر میں 4 دفعہ یہ میسج دے گی کہ تمہاری جو زندگی ہے وہ اپنا رول اب مکمل کر رہی ہے، اپنی زندگی کے اس سفر میں تم کمپلیشن کی طرف ہو۔ ٹھیک، اچھا، اس سے اس کی بات کو سنا، غور کیا اور اپنی زندگی کے سفر میں آگے بڑھ گیا، اور 40 سال گزر گئے۔ اوکے، 40 سال گزر گئے، وہ زندگی میں اپنے کام شام یہ وہ سارا کچھ روٹینز اس نے اپنائے رکھی۔ پھر وہ بیمار پڑا اوکے، اور وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گیا، ٹھیک، اور ڈاکٹرز نے اسے یہ کہا کہ بھی اب وقت آ گیا ہے۔ اچھا، تو وہ اس نے باہر آ کے نا ان صاحب کو ڈھونڈا، اور وہ ان کے جہاں وہ تھے وہاں وہ حیات تھے، جی، تو ان کے ساتھ اس نے دوبارہ رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ زندگی کے سفر کی تکمیل کے 4 میسیجز ملیں گے، تو مجھے تو یہ ایک ہی میسیج ڈاکٹروں نے دے دیا ہے اب، تو وہ آپ کی بات تو غلط ثابت ہوئی۔ تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ یہ بتایا کہ بھئی وہ جو 4 میسیجز ہیں وہ صرف تمہیں نہیں، ہم سب کو اپنی زندگی میں آتے ہیں۔ ہاں، وہ کہنے لگے جی کہ وہ 4 میسیجز یہ ہیں کہ جب آپ کے بال سفید ہونے لگتے ہیں جی، تو ہم اس میسج کو نہیں پہچانتے کہ یہ زندگی کا ایک نیا سنہری دور شروع ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ایک دور سے دوسرے دور میں ہم شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ایک فیز سے دوسرے فیز میں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان بالوں کو واپس اسی رنگ، انہوں نے کہا جی کہ دوسرا میسج جو آپ کو ملتا ہے جی، وہ آپ کو ملتا ہے اس صورت میں کہ جب آپ کی جو نظر ہے جی، وہ کمزور پڑتی ہے۔ او، نظر کا کمزور پڑنا ایک اشارہ قدرت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر سے زیادہ اندر جھانکنے کا موقع آ گیا، ہاں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم باہر کی طرف اپنی نظر تیز رکھنا چاہتے ہیں، اندر کی طرف جھانکنا ہی نہیں چاہتے۔ جی، انہوں نے کہا جی تیسرا بھی ایک میسج ہے، اور وہ تیسرا میسج یہ ہے کہ جب آپ کے دانت ہلنے لگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دانتوں کو ریپلیس کراتے ہیں، جی، جی، ہم اپنے کھانے کی وہی روٹین جاری رکھنا چاہتے ہیں، جی، ہم جی، وہی ساری چیزیں اسی طرح ہم کھانے پینے کا، جبکہ قدرت کیا میسج دے رہی ہوتی ہے، کہ آپ کو اب اپنا کھانے کا بھی چینج کرنا ہے، مینیو چینج کرنا ہے۔ مینیو چینج کرنے کا، تو آپ جھٹلا دیتے ہیں اس میسج جی، کو، جی، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اور پھر جو چوتھا پیغام ہے کہ جب آپ کو کوئی بیماری آتی ہے جی، تو یہ جسم کی کمزوری کی علامت ہوتا ہے، اور ہم اس بیماری سے بھی کافی عرصے تک ڈینائل میں رہتے ہیں۔ کتنی بیماریاں ہیں جی، جس میں ہم اس سے انکار میں ہی رہتے ہیں، ہاں بالکل، ہم آنکھیں بند کیے رکھتے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ حالانکہ اس بیماری کو پریونٹ کرنے کا اور اس بیماری کو مینج کرنے کا پہلا سٹیپ بلا کیا ہے، ڈینائل سے نکل آنا، جی بالکل، ایکسیپٹ کریں آپ۔ ایکسیپٹ کریں اور اس پر چل پڑیں، جیسے ڈائبٹیز میں ہم جی، دیکھتے جی، ہیں۔ بالکل، بالکل، تو یہ جو قدرت کے میسیجز ہیں یہ تو ہم اگر غور کریں، قدرت دیکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو ہم اگر اپنی لائفز پہ غور کریں تو ہمیں اپنی زندگی میں کتنے میسیجز ایسے روٹین میں ملتے رہتے ہیں، جی، پر دیکھنے والی نظر بھی تو چاہیے۔ جی، بالکل، بالکل۔ اور سب سے مشکل جو آپ نے ابھی کہا نا محسن صاحب، جی کہ جب نظر باہر کی کمزور ہوتی ہے تو پھر اندر دیکھنے کا جی ٹائم ہوتا ہے، جی تو مگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم جنگ شروع کر دیتے ہیں قدرت کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی، کہ ہم نے تو دیکھنا ہی باہر ہے، ہاں اندر جھانکنا، اندر دیکھنا، انٹروسپیکشن جو ہے نا، انٹروسپیکٹ کرنا از ڈیفیکلٹ جی بیسیکلی، جی۔ کیونکہ آبویسلی جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہم کمیاں بھی نظر آئیں گے نا۔ اچھا، ہم اس بات کو جو میں نے دیکھا ہے، میرے ساتھ جو لوگ رابطے میں آتے ہیں تو میں کبھی کبھی بات چیت کے دوران جی، ایک سوال ان سے ضرور پوچھ لیتا ہوں۔ جی، وہ یہ سوال پوچھ لیتا ہوں کہ آپ ماضی کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں یا مستقبل کے بارے میں؟ تو زیادہ تر لوگ جو ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرتے ہیں، جی، جی، اور جی، میں اس میں کس جواب کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں، حال کو، حال کو۔ اچھا، تو لوگوں کو اپنے حال سے زیادہ اپنے ماضی یا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی عادت پڑی اور ہوتی ہے۔ مسائل کی وجہ بھی یہی ہے نا محسن صاحب، کہ یا تو آپ ماضی سے نہیں نکل پاتے، جی یا آپ کو حال بحال کیے، آپ کا مستقبل بحال کیے ہوتا ہے، جی اور جی، حال ویسے ہی بحال ہو جاتا ہے۔ یہ جو بے حال ہے اس کے اندر ہی تو یہ بات، اس کا جواب چھپا ہے۔ جی، بے حال یعنی حال سے
बेगाना होना, जी जी तो अपने हाल से बेगाना होकर तो हाल को बदला भी नहीं जा सकता। जी हमारी आपसे बातचीत चलती रहेगी और एक ब्रेक लेते हैं, वापस पलट के आएंगे तो विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से लेट्स टॉक विद विलिंग वेज पर अपने अगले सेगमेंट पर जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से लेट्स टॉक विद विलिंग वेज में मैं हूं मोहसिन और नवाज, मैं हूँ जहाँ आरा। और हमारे साथ इस वक्त कॉल पर शामिल हो रहे हैं जनाब आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब क्या, भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आपके अल्फाज में आई एम गुड, एक्सलेंट, सुपर्ब, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अच्छा, तो क्या हाल है वाला आसिफ भाई? सब बेहतरीन, बाकमाल, जबरदस्त, अल्लाह का एहसान अजीम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऑल इज एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। वाह, आप हमेशा उसी जज्बे से मामूर नज़र आते हैं जो कि आपका शुरू से एक अंदाज है। आसिफ भाई, लोगों में सूरत हाल के मुताबिक ज़ाहिर के इंसान जो हुए तो कहीं भी कई दफ़ा हम बेचैनी में, परेशानी में, अपने फोकस से हट जाते हैं। हम खबरों की तरफ ज़रा ज़्यादा, और फिर बार बार खबरें, और फिर खबरें ही खबरें, और वो बाद में पता चलता है वो खबरें भी जो है वो ऑथेंटिक नहीं थी। बादुकात यानी इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ जाने से हम अपने असल एजेंडे को भूल जाते हैं, हम्म तो एनर्जी हमारी ड्रेन होती है इस सारी एक्टिविटी से। आपका क्या एक्सपीरियंस, क्या सोचते हैं इस बारे में? जी मोहसिन भाई, मैं इसको यूं लेता हूं कि आपके पास दो चॉइसेस हमेशा होती हैं। जी एक चॉइस ये है कि आप उन चीजों के बारे में या उन हालात के बारे में सोचते रहें जिनको बदलने की सलाहियत आपके अंदर 0% है या बहुत कम है। ठीक। और दूसरी आपके पास चॉइस ये है कि आप अपनी सारी एनर्जी, सारा फोकस, सारा ध्यान, सारी मेहनत जी उस चीज पर लगाएं जिस चीज से आप हालात बदल सकते हैं। जी और डिस्कनेक्ट हो गई हाँ, कॉल। ये बीच में जो जी है, जी वो कोई कुछ क्योंकि कनेक्टिविटी का भी कुछ मसला है। जी 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 जहां उनकी एनर्जी से कोई बदलाव नहीं आ रहा, जी और वहां जहां लगानी चाहिए वहां लग नहीं रही। जी 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 आसिफ भाई, अच्छा, अब ये जो है चीज, जैसे आपकी बात बहुत दरमियान में किसी कॉल ने इंटरप्ट किया, लेकिन आपकी बात समझ में आ गई कि एनर्जी जहां लगानी है बादुकात वहां नहीं लग रही होती, और जहां हमारी एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो सकती वहां हम जोर लगाए रखते हैं। तो अप्रोच क्या होगी, बेहतरीन अप्रोच के बारे में क्या कहेंगे? बेहतरीन है कोई भी सिचुएशन जिस पे आप एनर्जी अपनी एक्सर्ट करने लगे हैं, इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपका रोल क्या है? आप 3 एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं? 1 2 3। जैसे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी लाइफ में, या मैरिटल क्राइसिस आपकी लाइफ में, या आपकी लाइफ में हेल्थ क्राइसिस है, तो एक ये है कि उस हेल्थ क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, बिजनेस क्राइसिस, मैरिटल क्राइसिस के बारे में सोचते रहना और फ्रस्ट्रेट होते रहना और अपनी फेलियर्स को। अच्छा, इतनी खूबसूरत बात में वो होता ही है कि बादुकात बीच में, यानी हाँ, जैसे जी, 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 चूंकि जी, व्हाट्सएप पर हम कनेक्टेड हैं। जी 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 और फिर वो लाइव कॉल्स और मैसेजेस का भी तो सिलसिला साथ ही है ना। जी आसिफ भाई, ये व्हाट्सएप कॉल की ना एक बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरती है, वो ये है कि ये होती तो ये फ्री है, खासतौर पे मुल्क के बाहर वाले लोगों के लिए बड़ी काम देती है, पर इस पे नेटवर्क वाली कॉल आके आवाज़ के अंदर रखना ज़रूर डालती है। तो यही हुआ इसमें, आप जब चारों के स्टेटस के वाले से बता रहे थे तो बात बीच में फिर कटी। जी नो वरीज, आप इजाजत दें तो मैं रिपीट कर देता हूँ। जी जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई मैरिटल क्राइसिस है, कोई बिजनेस क्राइसिस है, कोई आपको हेल्थ क्राइसिस है, जी तो एक ये है कि आप उस सारे क्राइसिस के प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस या फेलियर्स के बारे में ही दिन रात सुबह शाम सोचते रहें। और दूसरा ये है कि आप एक डायरी पेन लें और अपने आप से पूछें, ये क्राइसिस तो आ गया है, ये फाइनेंशियल है, बिजनेस है, पर्सनल है, मैरिटल है, अब व्हाट इज माय स्ट्रेटजी टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस? मैं इस वक्त करंट सिनारियो के अंदर 1 2 3 3 टाइनी एक्शंस क्या लूं कि मैं इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप ले लूंगा। दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 24-5 इयर्स, जब से मैं दुनिया को सिखाता हूं एज अ हाई परफॉर्मेंस कोच, एज अ स्पीकर, एज अ ट्रेनर,
कि आप देखें कि आपके कंट्रोल में क्या है और आप इस रिसोर्सेज के साथ अवेलेबल रिसोर्सेज में व्हाट इज द बेस्ट एक्शन व्हिच आई कैन टेक राइट नाउ। तो मेरे ख्याल में जैसे ही हम ये राइट नाउ वाली अप्रोच पे आते हैं तो थिंग्स स्टार्ट शेपिंग अप और हमारी सारी एनर्जीज और फैकल्टीज आ जाती हैं कि भाई ये अज़दवाजी मसला तो आ गया है, लेकिन अब इससे बाहर कैसे निकलना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड बन जाऊं। जी जी अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन ये वही चैलेंज है जो कि कॉल के जी 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 सोल्यूशन ओरिएंटेड मेरे ख्याल में अपनी एनर्जीज को सोल्यूशन फोकस्ड रखना है। जी जी जो जी हमारा सवाल था कि हम अपनी एनर्जी या तवानाई का सही इस्तेमाल किस जगह पर है, तो मैं कहता हूँ अगर आप वो 3 काम कर रहे हैं जिससे सोल्यूशन की तरफ कदम बढ़ रहे हैं तो जी। वंडरफुल, कीप इट अप। जी जी वो जी जबरदस्त इस्तेमाल है एनर्जीज का। जी लेकिन अगर सोल्यूशन के बजाय हम प्रॉब्लम 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 फोकस्ड हो गए हैं तो वो तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ता जाएगा, वही मैग्नीफाई होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली ये हमारा इख्तियार है और हम अपने उस इख्तियार को अगर पहचानें और फिर सेलेक्ट करें, चूज करें और इस्तेमाल करें तो उसी ने तो नतीजा देना है। तो आसिफ भाई एग्जैक्टली। हस्बे रिवायत आपने इतना खूबसूरत एनर्जी से भरपूर मैसेज दिया मेरे नाजरीन के लिए कि मज़ा आ गया। आप खुश रहिए और किसी वक्त हम आपको शुक्रिया। और आपके नाजरीन मैं समझता हूँ बड़े लकी हैं कि वो आपको सुनते हैं और उनकी जिंदगी में आप तवानाई भरते हैं, हरारत भरते हैं, उन्हें जीने का सलीका सिखाते हैं। तो मैं तो आपसे खुद इंस्पायर हूँ फॉर अ लॉन्ग टाइम। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ी इनायत आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये आसिफ खान साहब हमारे पाकिस्तान के यूथ के साथ काम किया मुख्तलिफ तालीमी इदारों में। तो आसिफ खान साहब हमारे साथ थे। बहुत बेहतरीन बात कर रहे थे वो। और ये होता भी है ये मोहसिन साहब कि जी। जब आप किसी डिफिकल्टी में जाते हैं ना जी जी तो होता ये है कि जैसे लेट्स सपोज समबडी इज फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, जी तो होता ये है कि वो उसको राइट डायरेक्शन में क्योंकि सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचता, जी जिसकी वजह से जो उसका मैरिटल है वो भी क्राइसिस आ जाता है, रिलेशनशिप है तो वो भी आ जाता है, हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं, जी जी वर्क प्लेस परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी पुअर हो जाती है। जी तो जी जो असल क्राइसिस है ना हम्म, वो तो है ही है, जी जी उसके साथ जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं वो भी एक रोल प्ले करते हुए उस क्राइसिस को मजीद बढ़ा देते और हैं। जो मैग्नीफाई करना है वो हमारा इख्तियार था जो हमने इस्तेमाल कर जी लिया। जी जी बिल्कुल। तो बहुत ही बेहतरीन बात की, रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने बड़ी अच्छी एनर्जी के साथ जी जो बेसिकली हमारा आज के शो का थीम भी है और डिमांड भी थी कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए। देखिए अब इनकी जो आसिफ साहब थे, जी इनकी बात से मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मोटिवेशन का कोई इशू था या इन्होंने जरा सी भी कोई ऐसी बात की कि छड्डो मोहसिन साहब बस कर लो, किसी जंग दे हालात दसो और सुनाए आप सेफ हैं और सुनाए हाँ, आप घर ही है ना, हाँ। बाहर तो नहीं निकले। वो एक और भी चीज है ना, वो अपना सेफ होना मार्क भी करने का रिवायत आज कल है ना सोशल हाँ मीडिया हाँ एग्जैक्टली, हाँ। मार्क्ड एज सेफ। पे। हाँ तो हाँ, उसमें ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप काम पे क्या कर रही हैं, काम पे क्यों जा रही हैं जी, आप, नहीं जी। आप काम पे बैठे हुए हैं। तो देखिए अब ये जो है ना अप्रोच, ये है राइट अप्रोच जिसकी हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली कि आप जो आपके करने के काम है ना, जो रूटीन है उसको जारी और सारी रखें जी विद हाई मोटिवेशन। और उसमें आपको जो चीज़ आप एक अहम रोल प्ले भी कर सकते हैं बीइंग सिटीजन, एक बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और उसमें यह है कि किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने। आई एम रिपीटिंग दिस, किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने, किसी रूमर का हिस्सा ना बने, जी, किसी वर्स्ट सिनेरियो को बगैर जांचे परखे समझे रूमर को ऊपर यकीन ना कर लें, जी यकदम घर में ना बैठ जाएं, डिसफंक्शनल ना हो जाएं, आइसोलेट ना हो, लो मूड के साथ ना हो, नेगेटिव ना हो जाएं, जी खुद नींदें ही ना उड़ा लें, नींदें ना उड़ाएं, रातों को ना खाने-पीने जागें। जी बिल्कुल। तो ये ना हो कि आप खाने पीने से भी हो जाएं, प्लान्स जो आपके हैं आप अपने प्लान्स को आप पोस्टपोन कर दें। अगर स्टडी में हैं तो अपनी स्टडी को फोकस करें, जी अगर काम पर हैं तो जो जिस जगह आपका काम है, जैसे हम हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हैं, हमारे पास अटेंडेंस पूरी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। हमारे जितने लोग साथी काम कर रहे हैं, जब अभी मैं स्टूडियो पहुंचा जी। तो नीचे इस्तकबाल करने वाले जो लोग थे, गार्ड से लेके रिसेप्शनिस्ट और प्रोफेशनल्स और मुख्तलिफ लोग, हर जगह बहुत ही अच्छा मुझे उन्होंने जिस तरह से उनका इस्तकबाल था गर्मजोशी के साथ। और जी। क्योंकि हम यहाँ ये बातें कर रहे होते हैं तो मैं जब सुबह डॉक्टर सदाकत अली साहब का वो मैसेज
काम पे फोकस रखते हुए, जैसे उन्होंने जी, 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 हमेशा जी, की तरह वो जी। बात कर रहे थे, तो वो जब मैसेज मैंने शेयर किया तो सबकी तरफ से ना, मतलब मुझे पहला जुमला भला क्या मिला, जी, अदनान की तरफ से, जी। उन्होंने कहा कि आपका मैसेज सुन के बड़ा ही मजा आ गया। अच्छा। और जब आपकी रिसेप्शन पर जी, मरीजों को, जो आने वाले विजिटर्स हैं, उनको डील करने वाले को जी, अपने काम पर मजा आ रहा हो, जी। तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस तो फिर बेहतरीन देंगे। तो अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को अदा करना, और यही माहौल घर में भी रखना। जी, हम जब आपसे ये बातें कर रहे हैं नाजरीन, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने घरों में भी इसी माहौल को जी, ताज़ा रखिए, जी, बेहतरीन रखिए। कोई इसमें जो है वो अपनी रूटीन से हटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे हमारा जो इख्तियार है वो अपने अल्लाह पर की मेहरबानियों पर भरोसा और यकीन है। हम दुआ के ज़रिए उससे शऊरी राब्ता रखते हैं जी, और हम दुआ करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप नेक नियत होते हैं तो आपकी दुआएं भी एक ज़बरदस्त एनर्जी बन के स्प्रेड होती हैं। जी। तो अल्लाह इस सारी सूरत हाल और को, अल्लाह के साथ साथ मोहसिन साहब, जो कि हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ भी है, सब कुछ करने के बाद इसके साथ जो हमारा इख्तियार है कि हम कैसे भी किसी मनफी चीज़ को रद्द कर सकते हैं, फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जी जी, हम हवा नहीं मजीद दे सकते हैं ऐसे मसाइल को। बेसिकली सबसे बड़ी पॉजिटिव अफर्मेशन ही मेरे नज़दीक दुआ है। जी, यानी ये अल्लाह ने जो इंसान को दुआ की एक तरगीब, तालीम पहुंचाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, उनकी कितनी ऐसी दुआओं का जो हवाला है। जी, तो दुआ का मतलब ये है कि आप अपनी बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहें। जी, जब हम चुपके चुपके कोई बात करते हैं अपने अल्लाह से मुखातिब होके, तो ये दरअसल हम एक अपने ख्यालात का इजहार ही कर रहे होते हैं। और इसी के अंदर, यानी इसी दुआ के अंदर ये भी मैसेज है कि आप अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को, अपनी जिसके साथ, जैसे ये जितने हुकूक की बातें हैं जी, जहारा, जी, 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 ये बिल्कुल। ये सारा कुछ यही तो है हम्म, कि मुझे, मेरा किस पर क्या हक है और मेरे फ्राइज क्या हैं। बिल्कुल। और ये सारी जो लड़ाइयाँ हैं ना दुनिया में कहीं पे भी है मोहसिन साहब, हाँ, वैसे तो हैं हम बड़े लड़ाके। कल एक खातून मुझे मिली, तो वो कहने लगी कि मेरे ख्याल है उन्हें ये तो याद ही होगा सरहद पार वालों को कि हमें लड़ना ही तो आता है। तो हमसे जरा वो उनका मतलब ये था कि हमसे जो छेड़ा छाड़ी कोई करता है, जी, 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 तो जाहिर है जी, जिसके पास जैसे हमारी जो एक अपनी एक हमारे अंदर जो सबसे ज्यादा एक चीज नजर आती है कि हम जज्बातियत से मामूर हैं, तो हम जी, अपने जज्बात का रुख अगर लड़ने की तरफ डाल देंगे तो बस फिर उसी तरफ हो जाएंगे। जी, जी, चुनाचे इसमें ये घाटे का सौदा है कि हम इसीलिए तो इस बात का बार बार प्रचार करते हैं जी, कि इस सारे खित्ते में, सरहद पार या इस तरफ या दुनिया में भी कहीं भी, जी, एक इंसान की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे राब्ताकारों में तो अमेरिका, कनाडा, यूके वाले लोग भी हैं, जी, तो हम उन सबको ये कहते हैं कि अगर आप अपने आप को एक अच्छी जिंदगी के नताइज पर रखना चाहते हैं, जी, तो अपनी सलाहियतों का जायजा लेना, उन्हें बेहतरीन इस्तेमाल करना और उन पर काम करते रहना, और अपने आप को अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग के साथ, बेहतरीन जी, प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के साथ आरास्ता रखना। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बात की है मोहसिन साहब आपने। देखिए, हम जो रिस्पांस है ना मोहसिन साहब, जी पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर आप देखें, जहाँ पे भी जंग मुसल्लत की गई, या जहाँ जहाँ पे भी कोई डिफ़िकल्ट टाइम है जिन इलाकों में, कि हमें राइट की बात है जी कि जी हमारा हक ये है, हमें हमारा हक दिया जाए, जी और हमें हमारे हक से महरूम ना किया जाए। जी और उसके अंदर फिर वो जो राइट्स की जंग है, वो बढ़ते बढ़ते फिर वो किसी की, फिर वही जो राइट्स हैं वो कभी ना कभी फिर कंप्रोमाइज़ भी हो जाते हैं, सल्ब हो जाते हैं जो जी हुकूक होते हैं वहाँ जी पे। जी और फिर जब जंगें शुरू होती हैं तो उनका कोई अंजाम अच्छा नहीं होता। जी जी उसके अंदर फिर कोई अच्छा बुरा, गलत सही, ये कोई नहीं देखता, फिर वो माइट इज राइट वाला ही होता है। जी तो इसी वजह से हम तो बार बार ये कहते हैं कि पीसफुल रहते हुए, मस्बत रहते हुए, पुरसुकून रहते हुए, खूबसूरती से अगर डायलॉग को शामिल कर लिया जाएगा और डायलॉग को ही अपना सोल्यूशन बनाया जाएगा, जी मसला हल किया जाएगा, जी तो जी इससे तो बेहतरीन बात ही कोई नहीं है। बेहतरीन। जबरदस्त। विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से आप देख रहे हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, और लेते हैं एक ब्रेक, वापस पलट के आते हैं तो आपसे मजीद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
फीलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से, और हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं और इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अपना तारुफ जी करवाएंगे। डॉक्टर, जी जी मेरा नाम जी मिसेज आमिर है जी। और मेरी बेटी की एज जो है वो 17 साल है। मैंने उसके बारे में आपसे वो बात करनी थी। आप बताइए। उसका मसला हाँ जी, उसका मसला ये है कि वो माशाल्लाह बड़ी है लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं है, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करती। जैसे मतलब अगर वीकली हम कहते हैं कि अपने कपड़े नीट करके रखो बेटे, अपनी अलमारी साफ करो, तो वो नहीं इस बात पे मानती। अगर फोर्सली कहा भी जाए तो फिर भी वो बस अच्छे तरीके से नहीं कर पाती। जहारा हमारे साथ मौजूद है। जहारा, आप मिसेस आमिर से कोई सवाल भी इसमें जो पूछना जी, चाहें जी। ताकि हम उनके सवाल को पूरी तरह एड्रेस कर सकें। जी जी जी, मिसेस आमिर आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। बाकी उसकी एकेडमिक जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बाकी बिहेवियर वाइज भी बहुत अच्छी है। बस एक ये इशू है जो खासी देर से चल रहा है, तो वो इसको उस पे नहीं वो मतलब कॉम्प्रोमाइज कर रही मेरी बात पे। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिसेस आमिर, आपको सिर्फ यही एतराज़ है, बाकी तो ग्रेड्स अच्छे हैं और बाकी मामलात में भी अच्छी हैं, बस आपको ये एतराज़ है जो आपका मसला है कि वो जी, जी। अपनी कबर्ड्स और अपना रूम ऑर्गेनाइज नहीं करती हैं? जी बिल्कुल यही बात है। अगर अच्छा। मतलब अपना ब्रश जो जैसे ये ब्रश होता है तो उस बारे में बात करूँ, नीट नहीं करना। अगर कबर्ड है तो कबर्ड से चीज निकालेगी तो उसको खुला ही छोड़ देगी। बस इस तरह के उसके इश्यूज हैं। अच्छा जी, और आपके साथ उनका कैसा रिलेशन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से बेहतर है, तो ठीक है, उसमें अच्छा, कोई और ऐसा नहीं है। और बाकी उनका जैसे खाना पीना और नींद कैसी है? डॉक्टर साहब नींद उसकी मतलब सोती है। खाना पीना ऐसे है डॉक्टर साहब, मुझे फोर्सली उसे कहना पड़ता है कि बेटे ये चीज मतलब तुम्हारे लिए है, तुम्हें ये लेनी चाहिए, वीकली बीट लेना चाहिए या कुछ प्रोटीन, ये वो चीजें मैं ही फोर्स करती हूँ। उन्हें खुद नहीं पता होता कि मुझे ये लेना है। और जैसे मल्टीविटामिन शुरू किए हैं उसके, तो मैं ला के रखती हूँ कि बेटे ये खाओ, वरना मैं ना कहूँ तो कितने दिन वो बिल्कुल नहीं खाती। ठीक है। अच्छा, केयर फ्री एटीट्यूड है। बस आपकी बात मुकम्मल हुई, फिर मैं आंसर करूँ इस चीज़ को? जी 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 बिल्कुल जी, मेरी बात मुकम्मल हो गई। अच्छा, इसमें मिसेस आमिर ऐसे है मोहसिन साहब, दिस इज वेरी मतलब जिसे कहते हैं ना कॉमन पैटर्न्स, और ये बड़े आजकल पेरेंट्स का ना एक जिसे कहते हैं ना सर दर्द है। ये जब जी। भी मेरे मगर नहीं होंगी तो वो हम कर लेंगे। अच्छा, अब ये वाला जो एटीट्यूड है ना, जनरली वो पेरेंट्स ने खुद ही से डेवलप किया हो। जी। जब वो डेवलप करते हैं तो वो सॉरी, एट द एज ऑफ, आज मेरा क्योंकि गला भी थोड़ा ख़राब है जी। तो वो भी साथ साथ चल रहा है। अच्छा, तो जब वो डेवलप करते हैं तो एज के लिहाज से भी चीजें ज़ाहिर हो रही होती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बच्ची की एज की बात कर रही थी मुझसे, आपकी एज की थोड़ी बात हो जी। तो उसमें ये है मोहसिन साहब के अगर बच्चा 5, 7, 8 साल का है तो उसमें तो पेरेंट्स जो हैं वो बस बोलते हैं, वो समझते हैं कि कहना हमारा फ़र्ज़ है। कमरा ठीक कर लो, वार्डरोब सेट कर लो, कपड़े उठा लो, और साथ ही साथ वो खुद सेट भी कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं अब पढ़ाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अब बच्चे ने देखा कि भाई अच्छा चलो एक काम तो मैंने करना ही है, तो उसमें फिर पढ़ाई वाला काम करूँ क्योंकि इस पे तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जी। अच्छा, ये हैबिट्स जब डेवलप होते होते परेशान कुन सूरत हाल तब होती है जब बच्चियां ख़ास तौर पे ऐसी एज में आती हैं जब माओं को ये फिकिंग भी और लुक आफ्टर भी करती है घर को, तो फिर ऐसी सिचुएशंस में माओं को लगता है कि इसके साथ कोई मसला है। उनको लगता है मसला हमारे साथ नहीं है। अच्छा, देखिए मैंने इसीलिए कुछ चीज़ें पूछी, जैसे उनकी हाइजीन, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, सोना जागना भी ठीक है, खाने पीने में उन्होंने कहा मुझे ज़रा ज़ोर लगाना पड़ता है, जो कि अगेन फिर उनका इस्टेब्लिश्ड पैटर्न है, नहीं है। ताल्लुकात भी उन्होंने कहा ठीक हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो फिर अब जो करने का काम है ना वो माँ को खुद करना पड़ेगा, जिसमें उनको वो एक काम है जो असाइन करना पड़ेगा बच्चे को कि बेटा आप बिज़ी हैं, पढ़ भी रही हैं, स्टडीज़ भी डिफ़िकल्ट हैं, वी रियली अंडरस्टैंड, मगर ये है कि इस वीकेंड पे यू जस्ट हैव टू बी यू नो वर्क ऑन, और वो फिर आप उनको असाइन करें। जी। असाइन करने के बाद जो दूसरा काम आपने करना है वो उनसे सिर्फ फीडबैक लेना है। बिल्कुल सही। फिर आपने बार बार पोक नहीं करना, बार बार खुद से नहीं उठाना, हर चीज़ पे आपने बुरा भला नहीं कह देना, हर चीज़ पे आपने फिर उनके मूड को मैनेज कर मतलब यूजुअली माएँ क्या करती हैं कि वो बुरा सा फीडबैक देती हैं और साथ ही फिर कुछ एक्स्ट्रा करती हैं, जैसे कुछ एक्स्ट्रा खाना दे दिया, मूड को खुश किया, तो उससे बच्चे ने क्या सीखा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम है, यानी बिल्कुल गिल्ट सही। इंड्यूस करो और बात मुकम्मल करा लो तो ये तो बड़ा अच्छा काम है। लेकिन जिम्मेदारी का एहसास
दिलाना और फिर जिम्मेदार बनाना भी हमारे करने के काम हैं। जी और जिसमें आप ऑलरेडी मिसेज आमिर लेट हैं, ये कोई आज से 10 साल पहले करने का काम था, 12 साल पहले। लेकिन बिल्कुल कोई सही। बात नहीं, अभी भी आप ये असाइन कर सकती हैं और इफ़ेक्टिवली यू जस्ट हैव टू बी इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कि बेटा यू आर वेरी प्रिटी, यू आर वेरी सेंसिबल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ये बहुत अच्छा लगेगा अगर आपका रूम, आपका बेड, आपकी कबर्ड भी इसी तरीके से अच्छी पूरी सेट होगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और उसके बाद बस फिर आपके करने का काम सिर्फ यही है कि आप उस पर उनको दोबारा से फीडबैक लें, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। और जब आप नहीं करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि चेंज आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल पैनिक सही। हरगिज़ ना हो, जी बुरा भला हरगिज़ ना कहें, ताल्लुक़ हरगिज़ ख़राब ना करें, अच्छी चीज़ों पे अप्रिशिएट भी करें उनको। और जब आप देखें कि अच्छा ये काम हुआ है, तो उस पे ज़रा ज़्यादा अप्रिशिएट करें कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि आप ये काम करेंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई लव यू सो मच, आप मेरी बहुत कॉम्पिटेंट बेटी हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा बिल्कुल कि सही। ये भी बिहेवियर उनके अंदर इस्टेब्लिश हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल, आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की और मेरी जो तवज्जो है वो कमेंट्स की तरफ भी आई। इसमें प्रिंस हमज़ा साहब भी हमारे साथ हैं जो कि शो को पजीराई दे रहे हैं, जी राजा जी जी आबिद हमारे साथ हैं, आशिर क्रिस्टोफर हैं, जी राना अबू बकर साहब हैं। जी आप सब जो शो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, आपका बेहद बेहद शुक्रिया। हमारे साथ जब आप शो देखते हैं और आप इस शो पर शामिल हैं तो अपना नुक्ता नज़र भी ज़रूर बताया करें। जैसे कि अपनी बात से मुराद है कि आपकी अपनी ज़ाती दिलचस्पियाँ क्या हैं। जी मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि हम तो अपनी दिलचस्पियाँ, अपने मामूलात, अपनी रूटीन्स आपसे शेयर कर रहे होते हैं। हाँ जी आप जी भी ज़रूर बताइए आपकी हॉबीज़ क्या हैं? जी और जब आप अपनी हॉबीज़ के बारे में, अपनी रूटीन्स के बारे में बताते हैं तो उससे भी एक काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता है कि उनके अंदर कोई चेंजेस बाज़ औक़ात हमें जिन चीज़ों को हम हॉबीज़ समझ रहे होते हैं, जी उसको भी कई दफ़ा हमें थोड़ा-सा चेंज करने की, मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत होती है। जी तो ज़रूर अपने बारे में भी आप बताइएगा क्या-क्या मसरूफ़ियात रहती हैं, क्या दिलचस्पियाँ हैं? तो ये मेरे जो नाज़रीन इस वक़्त हमारे साथ हैं। जी, जी जी जहारा। जी बिल्कुल। इस तरह मोहसिन साहब बहुत सारे कमेंट्स भी हैं। जी, मारियम मोहसिन साहिबा कह रही हैं शो इज़ टू गुड। जी। बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा अब्दुल्ला कह रहे हैं कीप इट अप। राना अबू बकर भी कह रहे हैं, जैसे भी आपने कुछ नाम पढ़ भी दिए थे। जी, और सभी ये कह रहे हैं कि शो बहुत अच्छा है। ख़ासतौर पे जो चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों ने मोहसिन साहब हमें साथ भी दिया हमारा, वो ये कि यस, नीड ऑफ टाइम इज़ पॉजिटिविटी। ये ऐसा एक ज़रूरत है, वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम जितना मस्बत रहेंगे ना, उतने ही जी। मामलात बाअहसन अंजाम पजीर हो जाएंगे। अच्छा, आपके पास कमेंट्स शायद मेरे और आपके कमेंट टैली नहीं हो रहे। हाउ टू मैनेज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, शहरयार का सवाल आ गया। जी तो इस पर आप ज़रा रोशनी डालिएगा जहारा कि ये जो ओसीडी है, जी जी इसकी मैनेजमेंट के बारे में जो इनका सवाल है जो काफ़ी अहम है। अच्छा देखिए, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ना, जैसे आपको पता, नाम से ही पता चल रहा होता है कि इसमें ऑब्सेशंस भी होती हैं और कंपल्शंस भी होती हैं। हुँ, ऑब्सेस होता है हुँ, यानी पेशेंट जो है बेसिकली इट्स अ थॉट डिसऑर्डर और इट्स अ क्लिनिकल डिसऑर्डर एज वेल। साइकेट्रिक इश्यूज में अगर देखा जाए तो ये बहुत कॉमन होता है। कभी कभी जब हम मल्टीपल डायग्नोसिस होते हैं, हुँ, इवन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के साथ भी ओसीडी जो है वो डायग्नोज हो जाती है। क्योंकि ये थॉट डिसऑर्डर है तो सोचें हैं जो इंसान को हुँ, कुछ एक्ट करने पे मजबूर करती हैं, यानी कंपल्शंस पे। यानी सोच है हुँ, आपको कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माय हैंड्स, अब ये बिल्कुल। एक सोच है। तो जी, सोच जो है, ये सोच फिर आपको मजबूर करती है कि भाई मैंने हाथ धोने हैं। हुँ, तो इट इज़ नॉर्मल, मतलब एक सर्टन लेवल तक ना मोहसिन साहब, ये बिल्कुल नॉर्मल है कि जिसमें आपको लगता है कि मेरे हाथ को कुछ लगा था टेबल जी, पे, जी, जी, जी। एंड यू जस्ट गो हुँ, एंड वॉश हुँ, इट। और हुँ, उसके बाद फिर आपकी जो सोच है वो कहीं इधर उधर हो जाती है और आप बिजी हो जाते हैं। बिल्कुल अच्छा, सही। अब जब डिसऑर्डर की हम बात करते हैं, डिसेबिलिटी की बात करते हैं, तो वही सोच बार बार आपको तंग करती है। बेतहाशा सोचें हैं हुँ, जो आपसे मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने पे मजबूर करती हैं आपको। जैसे हाथ भी साफ नहीं है, डोर भी गंदा है, मेन गेट भी लॉक खुला हुआ है, समबडीज किसी ने अब ये खाना भी जो बनाया है तो ये शायद ये भी कोई प्रॉपर क्लीन नहीं होगा, बिल्कुल सही। हाइजेनिक नहीं होगा, हुँ, या मेरा ये जो कपड़े हैं शायद ये प्रॉपरली
प्रेस नहीं है या मैं अच्छा लग नहीं रहा हूँ. अब OCD की अगर मैनिफेस्टेशन देखें मोहसिन साहब, तो ये इतनी वास्ट है जी कि डिसऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर और डिसऑर्डर में एक थिन लाइन ही तो है ना, जी। एक डिग्री का फ़र्क है नॉर्मल एबनॉर्मल में. जी तो इसकी मैनिफेस्टेशन इतनी वास्ट है कि अगर आप बैठे बैठे आपको ज़रा सी बेचैनी हो मुझे कि मेरे मोबाइल्स जो हैं टेबल पे वो सीधे नहीं रखे हुए, तो मैं बड़ी अहम बात करते करते भी इसको सीधा कर दूँगी. सही, मैं बात सही। करते करते मग को ऐसा करूँगी, सही। या मैं अब मुझे लगेगा कि भाई मैं बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हूँ कैमरे में, तो मैं मतलब आपके अंदर एंग्जाइटी जनरेट होती है, आप एजी होते हैं, आप बेचैन रहते हैं, आपको आप एट पीस नहीं होते, तसल्ली नहीं होती आपकी, जब तक आप उस सोच को पाए तकमील पे ना पहुंचा दें. बिल्कुल सही. अच्छा, अब जब हम बात करते हैं डिसऑर्डर की, तो उसके अंदर बेसिकली इंसान बहुत पेन में होता है. मैनेजमेंट की जो इन्होंने क्वेश्चन किया है, तो देखें इसकी मैनेजमेंट दो तरीके से है. पहली मैनेजमेंट इनिशियल स्टेज पे अगर आप माइल्ड लेवल पे हैं तो थेरेपी से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है. यानी यू जस्ट हैव टू एड्रेस योर थॉट्स. आपने अपनी सोचों को बेसिकली, सोच है ये बीमार सोच है, मैंने इस पे काम नहीं करना, और बार बार से व्हेन यू स्टार्ट कन्फ्रंटिंग योर थॉट्स तो कमज़ोर पड़ जाती हैं. मगर अगर ये अब माइल्ड से मॉडरेट और फिर सवेयर आ गई है, जैसे कि हम पेशेंट्स को अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आते ही मोहसिन साहब तब हैं जब वो सवेरिटी पे होते हैं. कुछ लोग उसमें मॉडरेट या माइल्ड पर भी आ जाते हैं, जी, लेकिन जी। उनकी बहरहाल तादाद माइल्ड तादाद वालों की कम होती है. मॉडरेट वालों की उससे ज़रा ज़्यादा, हाँ. और स्वेयर वालों की, यानी जब वो पेन से कोई ऑपरेट करते ऑप्शन हैं. नहीं रह जाता. जी और उसके अंदर बड़ी बुरी शेप में भी होती हैं. जैसे मैंने लोगों को देखा है कि उनके हाथों की जो स्किन है वो डैमेज होती है, जी। या पैरों की, या नींद डिस्टर्ब होती है बुरे से. वो रिचुअल परफॉर्म अगर कर रही हैं तो कर रिचुअल परफॉर्म करने से ही वो नहीं सो पा रहे होते. जी तो उसके अंदर जो है वो फिर मेडिसिन्स, जी। जो इसकी फर्स्ट पे है वो दवाइयाँ. जब हम राइट मेडिसिन्स देते हैं जिससे पेशेंट, जो थॉट ब्लॉकर्स होती हैं, और जब वो जो थॉट ब्लॉकर्स हैं, जब उनसे उन सोचों को कुछ रिलीफ मिलता है पेशेंट को और वो रिसेप्टिव होता है, तो फिर थेरेपी से हम उसकी मदद करते हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो ये जो सारा मैनेज करना है थॉट्स को, जी पहचानना है, जी. और पहचान कर फिर उसको राइट टाइम पर, किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप राइट टाइम पर बिल्कुल अर्ली डायग्नोसिस पर ही डील करना शुरू करते हैं तो बड़ी आसानी से जी जी. आप उस मसले को डील कर पाते हैं. असद अली साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया असद भाई. जावेद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ हैं. रज़ा अहमद ख़ान जी जी. भी हमारे साथ हैं. अच्छा जी. और बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का. गानिया समी ने भी कमेंट किया है, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. एक हिंदी में भी आया है कमेंट, गूगल ट्रांसलेशन साथ ही ऑप्शन, तो मैं इसको भी पढ़ना चाहूँगी, जो कि वो लिखा हिंदी में हुआ है. अच्छा, और क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ी सी जो हमारे कमेंट्स हैं ना, मेरे सामने वो नहीं है, अच्छा. वरना मेरा जो फ़ोन है आपको पता है वो सारी ज़बानें पढ़ता है. जी 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 मोहसिन साहब, फिर मैं अब आप मेरा ख्याल है कि इस कमेंट का मैं फिर शो के बाद ही जवाब देता हूँ. अच्छा हाँ. अब क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे कमेंट्स हैं जिसके अंदर पाक आर्मी जिंदाबाद, शाहीन जिंदाबाद, ऐसे वाले भी हैं. जी पाकिस्तानी शहीनों ने तुम्हें औकात याद दिला दी काइंड ऑफ कमेंट्स भी हैं. जी तो जी. उसके बाद फिर जो उनके जो जवाब है वो हिंदी में आया, तो मैं चाह रही थी कि उसकी ट्रांसलेशन अगर हो, लेकिन आपको अभी अपीयर नहीं हो रहा मोहसिन साहब. मेरे पास अभी अपीयर नहीं हो. अच्छा, वो ये कह रही हैं जी. अच्छा, शहरी अवान जिन्होंने भी OCD का भी पूछा था ना, जी जी. उनका कमेंट है कि इतनी सिंपलिसिटी के साथ गहरी बात करना हर किसी की बस की बात नहीं है. सैल्यूट टू यू, सैल्यूट टू बोथ ऑफ यू. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो वेरी मच. हुमायूं साहब का भी कमेंट है, हुमायूं साहब का भी बहुत शुक्रिया. जी. देखिए लोग कितनी तवज्जो के साथ देखते हैं. हाँ जी यानी बिल्कुल. आप ये देखें कि बिल्कुल रेलिवेंट, जैसे जी. जितने भी कमेंट्स या जितने भी लोगों ने बात की, या जैसे कॉल पर हमारे साथी थे जी तो उनकी बड़ी रेलिवेंट बात थी. जैसे अभी जिन मदर से हम बात कर रहे थे, जी अब मुझे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि अब जैसे उन्होंने कितने खुल के अपनी बेटी का मसला यहाँ डिस्कस हाँ किया. हाँ. आई रियली अप्रिशिएट हाँ, मोहसिन साहब. और असल में और तो कोई उनको ऐसे कोई इसमें फील नहीं हो रहा था, कोई शेम नहीं फील हो रही थी. जी अच्छा, यही हम चाहते हैं कि आप अपने मसले को अगर खुल कर बताएं, जी. और उन्हें पता था कि ये बात नश्र हो रही है. हाँ बिल्कुल. अच्छा देखिए ना, हमारा बेसिक पर्पस भी तो मोहसिन साहब यही है ना. जी खुशी होती है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये जो हम डेडिकेट करते हैं विलिंग वेज लाहौर स्टूडियो से ख़ास तौर पे अपने व्यूवर्स के लिए, तो पर्पज़ ही ये है कि जो मसला आपको बेचैन किए देता है जी और आपके दिमाग में रहता है, यानी आपकी सोचों में हर वक्त, तो आप उसे शेयर करें.
جی شیئرنگ از بیسکلی جسے کہتے ہیں نا کہ بیسٹ سولوشن آف ایوری بالکل بالکل بالکل. اچھا جی، کامنٹ اس کے علاوہ فراناز نے بھی کیا ہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو خواجہ صاحب کا کمنٹ، خواجہ عبدالحق صاحب کا کمنٹ حسب معمول حوصلہ افزائی والا، بہت شکریہ. راجہ شعبان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی. راجہ صاحب نے مجھے میسج کیا، بہت شکریہ راجہ شعبان آپ کا. اچھا، اور شہری اوان جو ہے نا، انہوں نے جی اب ایک اور لائف میں، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں نا جی کمنٹ ہے، کہہ رہی ہیں کہ ون مور کویسچن، اچھا جی اوور تھنکنگ ریلیشن شپ کو کس طرح ڈیمیج کرتی ہے اور کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ اوور تھنکنگ کسی بھی تعلق کو کیسے ڈیمیج کرتی ہے. جی جی جی. اچھا جی جی محسن صاحب اس پہ. اوور تھنکنگ جو ہے وہ ایکچولی آپ کو ایک بہت ہی ڈسٹارٹیڈ قسم کا ایک میسج دیتی ہے، کیونکہ آپ اسی میسج کو بار بار سن رہے ہوتے ہیں. تو کسی نے آپ کے لیے، آپ کے ریلیشن شپ میں جی کسی نے کوئی ایک دفعہ جب بات کی ہے جی تو بہت ممکن ہے کہ آپ اسے 10 دفعہ ریکال کریں. جی 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 یعنی اسے میکسیمائز کر کے، بڑا کر کے یہ اوور تھنکنگ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، جی. جس سے ہمیں وہ بات بہت ہی زیادہ اس کی گونج سنائی دیتی ہے، اور ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ تو وہ بہت ہی ہمارے خلاف ہر وقت وہ یہ باتیں کر رہا ہے، جبکہ اس نے وہ ایک دفعہ بات کر کے بعض اوقات لوگ اپنی مصروفیات میں چلے جاتے ہیں. بعض اوقات ان کا مقصد جو ہے وہ آپ کو صرف تنگ کرنا ہی ہوتا ہے، ڈسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل. اچھا، اوور تھنکنگ میں محسن صاحب بہت کچھ ایسا بھی سنائی دیتا ہے جو ہوتا نہیں. ہاں ہاں بالکل یعنی صحیح. آپ کی ایزمپشنز ہوتی ہیں، جی آپ وہی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، یا ماضی ہوتا ہے یا مستقبل ہوتا ہے. جی اوور تھنکنگ میں جی جی حال نہیں ہوتا، اور ایسا بہت کچھ ہوتا ہے جو ہوتا ہی نہیں ہے. تو آبویسلی جب کچھ ایسا ہوگا کہ جو ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اور آپ ازیوم کر رہے ہیں جی اور سوچے ہیں جو بچے دے رہی ہیں، تو اس میں تو پھر کچھ بھی، کوئی بھی تعلق ہوگا تو وہ آبویسلی افیکٹ تو ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی وجہ سے ہم اوور تھنکنگ کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے سیریس ایشو. اس کو اگر آپ سفر کر رہے ہیں اوور تھنکنگ سے، تو آپ میڈیٹیشن کے تھرو اس پہ کام کر سکتے ہیں. آپ اپنی نیند پوری کر سکتے ہیں. آپ اپنی تھاٹس کو، رائٹ تھاٹس کو ایڈریس کر کے، رانگ کو کنفرنٹ کر کے آپ ڈیل کر سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ذرا اوور تھنکنگ میرے تمام مسائل کی وجہ ہے، تو آپ کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس وقت جب ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہیں، تو میں خاص طور پہ آج کے میسج کا، آج کے شو کا جو کرکس ہے یا میسج ہے، وہ آپ سے آپ کو یاد دلا دینا چاہتا ہوں. اور وہ میسج یہ ہے ہماری آج کی ساری گفتگو کا، جی کہ ہم نے فوکس رکھنا ہے اس پر جو کہ ہمارا ایریا آف کنسرن ہے، سرکل آف کنسرن کے اندر جو چیز ہے جس پر ہم کنٹرول رکھتے ہیں، جس پر ہم انفلوئنس رکھتے ہیں. ملکی حالات میں جن اداروں نے اس میٹر کو ڈیل کرنا ہے وہ بہت اچھے سے ڈیل کر رہے ہیں. انہوں نے دنیا کے سامنے ایک سٹرونگ اچھا میسج، پہلے امن کا میسج، اور پھر جہاں ہمیں لگا کہ یہاں میسج جو ہے وہ اس کی لینگویج وہ والی سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر دوسری لینگویج کے ساتھ بھی انہوں نے، اداروں نے پیغام چیزوں پر خرچ کرنے کی بجائے ہمیں ان مسائل کو حل کرنا ہے آپس میں مل جل کے. ہم تو یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم سارے آپس میں ایک زبان بولنے والے آپس میں خیالات سانجھے کریں. جیسے کہ ہم دیکھتے بھی ہیں عوام سب جگہوں پہ ایک جیسے خیالات رکھتی ہے. عوام کے خیالات میں تبدیلی نہیں ہے. جی جی خیالات جو ہے وہ خاص کچھ گروپ ہے جو کہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جن کا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے. جی جی بالکل تو بالکل. میں یہ چاہوں گا کہ اس میسج کو بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہم ضرور، اگر ہم سوشل میڈیا پر جانا ہی چاہتے ہیں، تو اپنے امن کا، محبت کا اور پازیٹیوٹی کا جو میسج ہے جی وہ ہم ضرور سپریڈ کرتے رہیں. جی اور اس میں دوسروں کو ہم خیال بنانے کی، سرحد پار سے بھی میں توقع کرتا ہوں کہ وہاں بھی جتنے ہمارے آڈینس ہیں، میرے اپنے سوشل میڈیا فرینڈز میں بہت بڑی تعداد سرحد پار سے ہے. جی 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 تو ان سے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا رول ادا کریں اور اس میں امن کی اس خطے کو جتنی ضرورت ہے اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں. بے شک بالکل محسن صاحب. اور میں ایک شعر بھی، آج آپ نے شعر و شاعری نہیں کی محسن صاحب؟ نہیں، میں نے شروع میں سنایا تھا، بیزار ہے جو جذبہ حب الوطنی سے، ہاں وہ بالکل لوگ بالکل. کسی سے بھی محبت نہیں کرتے. واہ واہ.